Yeah. So the first question is, why are your parents sending you to school, or why are you getting educated? Improving skills, safe future, very good. Wise and ethical human being with knowledge and education, improving skills, improving confidence in life, very good. To add value, okay. To be a good person in society, very good. Grow and learn, knowledge, skill. So why are all these skills and knowledge needed? Whatever knowledge you are taking from school, college, or wherever, any other sources, why are this knowledge, what is the use of this knowledge? To get good job, very good. This is one of the most important thing which we have learned, that if you go to a good college or school, okay, the probability that you will get a better job will go up. Secure future, okay. I assume secure future means you get a good job. Good and independent person in life. Good standard of living, very good. So thank you so much for your replies. I would like to point out few of the things. So when I asked you why are you getting educated, the first thing was to gain knowledge and to improve your skills and so on. And then why are these skills needed? Basically, these skills are needed to get your first job. This is the basic understanding of education system in India, because we actually do trading with our colleges also. If I have paid 5 lakh fees, I need a package of 5 lakh and so on. Okay, so in the same way, if somebody gives 50 lakh, obviously they should expect a package of 50 lakh. Okay, so unfortunately our education system may work in that way, but corporate system doesn't work in that way. Corporate system works in a little different way. All right, so before I go ahead and understand, make you understand about finance, I want to make you understand about our education system, because till the time you don't understand what is wrong with the education system, you will never understand why you people may not become rich. Or in case if your dad started a business 20 years back, okay, during that time he may had limited capital, okay, but after a particular point your dad has stopped growing, he is satisfied with his life, he has accepted that if I'm earning 20 lakh rupees per annum, it is more than enough and I don't need to take any more risk. It may be because of family or because of any other reason, but the most important thing is, whether your dad was educated or no, most of the time what happens is you get locked up in this highest growth cycle, wherein you, once the growth is clear, after that nobody takes extra effort to become more successful. Okay, apart from that, because our age increases and family responsibility increases, we normally reduce our risk appetite and we don't take a lot of risk, because we need to save our money for our family. Okay, so what's wrong in all this? Okay, so first we need to understand the education system was made for two important purpose. All right, whoever has had made this system, basically it is said that in 1834 Macaulay, okay, from British Empire had made this system, and there were two important reasons for this system. Okay, the first important thing was to make communication easier, that is to make to make you understand about English. Okay, and second thing was to see to it that you have a fear of your senior from early age in life. Okay, once I start Hindi, it will be difficult to shift to English. Okay, anyways, so दो रीजन थे फॉर दो रीजन थे एजुकेशन सिस्टम के. ऑलराइट, पहला रीजन था कि जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो तुमको समझ में आ जाए. ओके, इंग्लिश कम्युनिकेशन इसलिए सिखाना था बिकॉज ब्रिटिशर्स को तुमको ऑर्डर देना था. और दूसरा चीज जो एजुकेशन सिस्टम को बनाना था, मतलब जिस रीजन के लिए एजुकेशन सिस्टम बना था, वो ये था कि अर्ली एज से ही तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसके सामने कितनी बात करनी है. यू कैन नॉट, मतलब तुम किसी सीनियर के सामने उल्टी बात नहीं कर सकते हो, टीचर्स के सामने नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते हो, प्रिंसिपल के सामने तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो. अगर एमबीए कॉलेज में हो तो डायरेक्टर के सामने जितने कम क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा. नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन पूछने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी.
ऑलराइट, तो दूसरा ये था। और जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बना ये सिर्फ क्लेरिकल जॉब के लिए बना है। ओके तो ये 1834 में बना था, जो अभी तक 2021 तक ये सेम सिस्टम इंडिया में चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली अभी जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं। ओके बट एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है वो तुम लोग मतलब एज अ पर्सन हमको समझना बहुत जरूरी है। ओके तो एजुकेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस था, जो जिसने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया था उसका ये पर्पस था कि तुम लोगों को क्लेरिकल जॉब तक रोक देना। ओके इनोवेशन को रोक देना, क्वेश्चनिंग को रोक लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि यू शुड नॉट क्वेश्चन। अगर तुम देखोगे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी तुम क्वेश्चन करते हो तो लोग बोलते हैं क्वेश्चन मत करो। ओके तो ये एक चीज थी। इसके अलावा भी कुछ और चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की है जो कॉर्पोरेट में नहीं चलती है बट एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती है। जैसे 90% जो एजुकेशन है वो यूजलेस एजुकेशन हमको दी जाती है। ओके उस यूजलेस एजुकेशन में जैसे हम मैथ्स अगर देखें तो a+b² इसका कोई यूज नहीं है। ओके अगर हम अपनी बात हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो क्यों इंग्लिश कंपलसरी की गई है, इसका कोई आंसर अभी तक हमको मिला नहीं, ऑफिशियल आंसर नहीं मिला। ट्रिग्नोमेट्री मेरे हिसाब से फॉर मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ लोग ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में यूज कैसे करना उनको नहीं आता। ओके और क्लेरिकल जॉब के लिए तुमको रेडी करने के लिए तुमको जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, अगर कॉमर्स वाले तो वो सिखा दिया गया है। ओके उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है एक जो एटीट्यूड है, ऑलराइट उस पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा ये लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ने हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड लाइफ वो चेंज कर दिया है। ओके आई होप आगे वाले टाइम पर ही अच्छा हो, बट अभी तक जो चल रहा है ओके बेसिकली एक चीज में हमेशा मतलब देयर आर मेनी ऑपोजिट्स बट एक चीज हमको सिखाई जाती है कि फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस है। तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस नहीं है। ओके ना ही सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर है। फेलियर तो पार्ट है सक्सेस का, तो जब तक तुम फेल होना नहीं सीखोगे तब तक आगे जाना नहीं सीखोगे। और सक्सेस और फेलियर को इतना परफेक्टली हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बाइफरकेट किया है कि हमारे दिमाग में भी वही चलता रहता है कि हम अगर पास नहीं हो रहे तो फेल हो रहे। द इश्यू इज एवरी टाइम यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन रियल लाइफ। जब तुम जाओगे और जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे दे हैव एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड 10, 15, 20 थिंग्स में भी, और उसके बाद में वो लोग सक्सेसफुल हुए। सो देर आर मेनी पीपल हु हैव कम अप विद 10 स्टार्टअप्स जो फेल हुए थे और उसके बाद 11वां स्टार्टअप पास हुआ या सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद भी मेहनत करते रहना है, ऐसा नहीं कि सक्सेस आ गया उसके बाद हमको रुक जाना है। तो एक चीज जो मुझे जो बहुत मैंने जो देखा है यंग बच्चों में, एक चीज है जो फेलियर का ऑपोजिट सक्सेस मानकर ही चलते, तो जब भी वो कोई एक्शन भी लेते हैं तो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो टू ऑल ऑफ यू आई वांट टू से द फर्स्ट थिंग ओके कि तुमको एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना है कि फेल होना गलत नहीं है बट फेल होकर नहीं सीखना ज्यादा गलत है। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर तुम लिख रहे हो सब लोग ओके इफ यू आर राइटिंग दिस थिंग प्लीज राइट इट कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस एंड मे बी सक्सेस इज वन स्टेप अहेड ऑफ फेलियर। बट क्योंकि हमारे दिमाग में 15-20 सालों से बार बार पास होने पर इतना फोकस किया गया है, हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं फेलियर को लेकर। तो फेलियर तो सबके मतलब एप्पल के 17 प्रोडक्ट फेल हुए थे, उसके बाद उनका आईफोन सक्सेसफुल हुआ था। ना ही एप्पल का पीसी चला था ना ही आईपॉड चला था, जब तक आईफोन नहीं आया था तब तक आईपॉड की भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में एप्पल को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था। बट यू सी दे कंटिन्यूसली इंप्रूव देयर प्रोडक्ट। ओके ब्रांडिंग मार्केटिंग पे बहुत फोकस किया एंड टुडे एप्पल हैज बिकम एन एस्पिरेशनल ब्रांड फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पहला चीज समझना है कि अगर हम फेल भी हो जाते हैं, वेदर इट इज इन इन्वेस्टिंग, वेदर इन पर्सनल लाइफ, वेदर इन प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इन एजुकेशन ऑल्सो, इफ यू फेल इट्स ओके। ओके यू हैव टू एक्सेप्ट। कभी कभी स्टेज पे जाकर हम लोग शिवर करने लग जाते हैं, किसी किसी को स्टेज फियर होता है, तो स्टेज फियर नीचे रहने से तो सॉल्व नहीं होने वाला है। वन थिंग योर टीचर एंड मे बी यू हैव टू से योरसेल्फ कि अगर मैं फील्ड पे रहूंगा तो शायद 6 मार लूंगा। ओके अगर मैं बाहर बैठ के देखता रहूंगा तो इट विल नेवर इंप्रूव, माय स्किल्स विल नेवर इंप्रूव। ओके तो जो भी चीजें तुमको ग्राउंड पर रहकर सीखनी हो, ग्राउंड पर रहकर, ग्राउंड जीरो जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो हाँ जिंदगी में जो फेल होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो फेल होना देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम सक्सेस मिल गया तो गलत है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि शायद हमको ऐसी ट्रेनिंग मिल गई है कि सक्सेसफुल होना का प्रेशर सबसे ज्यादा है, नंबर 1 आने का प्रेशर सबसे ज्यादा है, जबकि दोनों ने जो एजुकेशन ली उसका कोई खास यूज नहीं है बिकॉज वो एजुकेशन तुमको क्लेरिकल जॉब के लिए दी गई है। और अगर तुम कॉमर्स की एंट्रीज की बात करो, मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग एमबीए।
तो जितने भी लोग कॉमर्स या फाइनेंस जॉब के लिए जा रहे हैं और उनको वो सोच रहे हैं कि हमको जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आती है या हमको कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर। 1995 से पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर नहीं थे। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैं जैसे ही टैली में जर्नल एंट्री मारता हूँ, मेरी बैलेंस शीट अपडेट हो जाती है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट टेक इन रॉन्ग वे, मुझे कोई एमबीए फाइनेंस की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, या मुझे कोई ग्रेजुएट की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं 10th पास आदमी को भी टैली सिखा दूं और उसको मैं बिठा दूं मेरी दुकान पे, ऑल राइट, ही कैन डू द सेम वर्क विच एमबीए फाइनेंस कैन डू। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज कि हमको जो स्किल्स सिखाई गई है वो इनफ नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और दूसरा चीज जो मैंने अभी बोला है, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, दैट इज देयर। सेकंड थिंग, हमको एजुकेशन सिस्टम ने क्या क्या नहीं सिखाया, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे पहली चीज जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है वो है हाउ टू मैनेज मनी। जो भी लोग लिख रहे हैं प्लीज राइट इट, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि इसको इस पे मैं डिटेल में एक एक चीजें कवर करते रहूंगा। या very good, Amit. So Amit is saying that ERP 9 software doing the same thing. So basically हमारी ये वाली skills काम नहीं आने वाली. This is the whole thing. Okay. So according to me, there are 3 important things for a very good life. All right. So सबसे पहला है कि you need to understand money. और ये unfortunately हमारे education system में नहीं है. हमको पैसा कमाना सिखा दिया है, but पैसे को use कैसे करना है, संभालना कैसे है, ओके हमको एजुकेशन सिस्टम बताता है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, पर ये नहीं बताता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। तो हम पैसे के लिए कैसे काम करें वो तो हमको सिखा दिया गया है, और वो कितनी टाइम तक कर सकते हैं, हम 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल कर सकते हैं, इसके ऊपर तो हम वो भी नहीं कर सकते, और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, तो उसमें मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग जो भी लोग लिख रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इज हाउ टू मैनेज मनी, वेयर आर द इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच आर द प्लेसेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट, और व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट रिटर्न ऑफ ईच एंड एवरी। तो वो आज सब तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरी और तीसरी चीज मैं कवर नहीं करने वाला हूं, बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इसको समझो। सो द सेकंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड फूड एंड बैड फूड। ये एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी नहीं सिखाया गया, और क्यों नहीं सिखाया गया उसका रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज गुड फूड और बैड फूड, आज बहुत सारे स्कूल्स में डोमिनोज ने खुद फ्रेंचाइजी दे दी है, मतलब स्कूल के अंदर ही डोमिनोज आ गया है, मैकडॉनल्ड्स आ गया है। तो अगर कोई स्कूल मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज से कमा रहा है, तो वो क्यों बताएगा कि ये खाना गलत है। अब ये खाना क्यों गलत है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक बार ऑनलाइन जाकर इस पे सर्च करो कि व्हाट इज रॉन्ग विद फास्ट फूड, व्हाट इज रॉन्ग विद फ्रोजन फूड, ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए और संडे को 2 अक्टूबर को अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो आई एम श्योर कि तुम सबको अपनी लाइफ को बेटर करना है, और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए तुमको कुछ और चीजों का ध्यान रखना है। आवर सेशन इज ओनली अबाउट मनी, तो मैं सिर्फ मनी पे फोकस करना चाहता हूं, बट देयर आर 2 और इंपॉर्टेंट थिंग एज आई सेड। तो फर्स्ट, ओके, so the second part is कि तुमको गुड फूड और बैड फूड के बारे में नहीं सिखाया जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये राइट है कि जो हमारा डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स हमारे अगर स्कूल के अंदर आ गए, जो भी फास्ट फूड वाले तुम्हारे स्कूल के अंदर आ गए, ओके, और सिर्फ फास्ट फूड नहीं है, द एंटायर रेंज ऑफ मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज, ओके, ये प्रिजर्वेटिव के बेसिस पे ही चल रहे हैं, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको ये नहीं सिखाया गया पहले तो उसका तो फूड एफएमसीजी तो है ही है, बट मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर भी शायद बहुत बड़ी फंडिंग करता है, इन इनडायरेक्ट फंडिंग करता है इन स्कूल कॉलेजेस को, कि ये सही चीजें तुम मत बताओ, क्योंकि अगर लोग सही खाना खाना सीख गए तो शायद वो बीमार होना भी बंद हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द सेकेंड थिंग जो स्कूल ने हमको नहीं सिखाई है। थर्ड थिंग, हमको हमेशा है ना प्रॉब्लम के बाद की चीजें सिखाई गई है, ओके, जैसे बीमार होने के बाद क्या करना है, जैसे प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन ढूंढना है, ओके, बट इफ यू गो बैक टू इंडियन ट्रेडिशंस, ओके, वहां पर हमेशा हमको प्रॉब्लम से पहले की चीजें सिखाई जाती है, और उसमें अगर तुमको अपनी लाइफ बेटर करनी है, ओके, तो मेरे हिसाब से तुमको आयुर्वेदा का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, जो एक्चुअली हमारे स्कूल में होना चाहिए। बट अगेन गुड फूड और बैड फूड और आयुर्वेदा, ये 2-4 सेक्टर्स को इंडिया से खत्म कर सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ये जानबूझकर डाला नहीं गया है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, एजुकेशन का जो बुक्स है इसमें तुम्हारी फैकल्टीज की कोई गलती नहीं, स्कूल की भी शायद गलती नहीं है। द प्रॉब्लम इज
बहुत सारे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये पॉलिटिशियन बनाते हैं, और इन पॉलिटिशियन की पार्टी फंडिंग इन जगहों से आती है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू डू ऑल दिस। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच, ये तो 3 चीजें मैंने तुमको बताई है। आई थिंक इफ यू लर्न दीज 3 थिंग्स योर लाइफ विल बी वेरी वेरी गुड। ऑलराइट, बट इसके अलावा क्या हो जाता है, जैसे जैसे तुम लर्न करते हो ये सब चीजें, और जैसे जैसे तुम कमाना चालू करते हो, यू मस्ट हैव सीन कि हमको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। ओके, और लड़कों को अभी मैं एक एग्जांपल लेकर खाली बताना चाहता हूं कि जो लड़के, मतलब लड़कियां भी बहुत फालतू खर्चे करती हैं और लड़के भी बहुत फालतू खर्चे करते हैं, बट राइट नाउ मैं तुमको पहले बता रहा हूं कि पैसे को बढ़ाने से पहले पैसे को बचाना सीखना है, और उसके लिए हमको ये समझना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी वी आर वेस्टिंग अगर हम कोई भी गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो। All right, so this is one of the most important thing which we need to learn. All right, कि हमको क्या सीखना चाहिए। All right, तो मनी में जो मनी मैनेजमेंट है उसके पहले हमको सीखना है कि हमारे पैसे को हम बचाए। ऑल राइट, और उसके बचाने के 2-3 रीजन है जो मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ऑल राइट, तो द फर्स्ट रीजन, मतलब जो फर्स्ट चीज है, ऑल राइट, तुमने देखा होगा बहुत सारे यंग लोग फर्स्ट जॉब लगते ही गाड़ी खरीदने का उनका ड्रीम होता है, और स्पेशली लड़कों का होता है, इफ नॉट गर्ल्स, लड़कों का तो होता है कि हमको गाड़ी खरीदनी है। ऑलराइट, अब अगर तुम रिच हो, अगर तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको अमीर नहीं बनना है इन फ्यूचर भी, अगर तुमको आज ही मिडिल क्लास हो और कल भी मिडिल क्लास लेना है, तो ये वाला जो छोटा सा पार्ट है शायद तुम्हारे लिए नहीं। फिर यहाँ पर कुछ लोग है ना, क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग इस तरीके से की जाती है कि अगर तुम गाड़ी नहीं खरीदते हो तो क्या लाइफ जी रहे हो, इट इज अ यूजलेस लाइफ यू आर लिविंग। तो ये जो मार्केटिंग कर करके तुम्हारे दिमाग में चीजों को डाल दिया जाता है, उसकी वजह से हमको क्या होता है कि ओके, हमको हमको क्या हो जाता है कि हमको ऐसा लगने लग जाता है कि इफ आई डोंट बाय अ कार मेरी लाइफ ही यूजलेस है। ओके, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर एक मिडिल क्लास आदमी, अगर कार खरीदता है तो उसमें क्या तकलीफ आ सकती है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर अ 8 लाख रुपी कार। मैं ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी गाड़ी कर रहा हूँ, 8 लाख रुपए में आजकल सिर्फ हैचबैक आ रही है, तो मैं एक हैचबैक कार का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू सी, अगर हम एक कार खरीदते हैं तो व्हाट आर द एक्सपेंसेस। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हुए ऑन द लेफ्ट साइड। सो कॉस्ट पर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट, पार्किंग, ठीक है। तो सबसे पहली कॉस्ट, अगर तुम कार खरीदते हो तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूं, तो मुंबई में अगर तुम्हारी पार्किंग है तो भी कभी कभी तुमसे पार्किंग फी ले जाती है, क्योंकि सोसाइटी उस प्लेस को क्लीन करती है। ओके, या तो कभी कभी पार्किंग नहीं रहती, पर वो कॉमन जो एरिया होता है उसके लिए तुमको पार्किंग फी देनी पड़ती है। ऑलराइट, सो तो सबसे पहले पार्किंग फी होती है, उसके बाद क्लीनिंग फी होती है। तो जब भी तुम गाड़ी खरीदोगे तो उसमें क्लीनिंग का भी खर्चा आता है। ऑलराइट, उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस होता है जो काफी हाई होता है। उसके बाद गाड़ी की ईएमआई होती है जो भी काफी हाई होती है। ऑलराइट, उसके बाद इंटरेस्ट होता है, बिकॉज तुमने पैसा डाउन पेमेंट में दिया है वो पैसा तुम कहीं और लगा के इंटरेस्ट कमा सकते थे, तो वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लॉस है। उसके बाद मेंटेनेंस हो जाता है गाड़ी का, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल हो जाता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन एक्सपेंसेस जो तुमको कार लेने के वक्त देखते हैं। अब अगर तुम एक पेट्रोल गाड़ी लेते हो और 500 किलोमीटर ही चलाते हो, तो इन दैट केस, ओके, 1000 किलोमीटर चलाते हो और 3 एग्जाम्पल हम लोग ने लिए कि कौन से एग्जाम्पल, मतलब कौन से ब्रैकेट में तुम पहुंचते हो वो तुमको देखना पड़ेगा। बट अगर तुम 500 किलोमीटर ही चलाते हो तो द पार्किंग फी इज 250 रुपीज। ऑल राइट, उसके बाद क्लीनिंग फी 500 रुपीज जो कॉमन है, इंश्योरेंस फी अराउंड 12,000 होते हैं 8 लाख की कार का, तो 1000 रुपए पर मंथ। ईएमआई अराउंड 12,000, 6 लाख का जो ईएमआई हमने पकड़ा है, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट है इसमें। ऑल राइट, उसके बाद 2 लाख जो डाउन पेमेंट है उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज, मेंटेनेंस इज अराउंड 1500 रुपीज अ मंथ, अदर एक्सपेंसेस 750 रुपीज, पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर 500 किलोमीटर, जहां पर हम 7 रुपए किलोमीटर पकड़ रहे हैं, और आज ये बढ़ गया है बिकॉज ये पीपीटी 2020 में बनी थी। ऑलराइट, तो ये मेरे ख्याल से 5000 के आसपास पहुंच गया है। वेयर एंड टेयर अराउंड 500 रुपीज पर मंथ, क्योंकि तुमको हर 30-40 हजार किलोमीटर पे टायर चेंज करनी पड़ती है, बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो वो भी कार का एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन अप्रोक्सीमेटली 5250 रुपीज पर मंथ। दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस। तो 500 किलोमीटर चलाने के लिए एक्चुअली यू आर पेइंग 27,250 रुपीज, जो आता है 54 रुपीज पर किलोमीटर।
Okay, so this is the expense you are paying for holding a car if you are traveling very less. So basically 54 rupees किलोमीटर बहुत ज्यादा है. और अगर तुम कहीं पर भी, मतलब ये पैसा अगर तुमको कहीं पर जाना है और तुम 12-15, मतलब आज तुम बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो 20 रुपए किलोमीटर तक तुमको पड़ेगी. बट अगर तुम सिर्फ 500 किलोमीटर महीने की चला रहे हो एवरेज, मतलब साल की सिर्फ 600 किलोमीटर चला रहे हो, 6000 किलोमीटर चला रहे हो, तो तुमको 54 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आता है. एंड आई थिंक कोई भी फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, इमोशनल वैल्यू रिच लोगों को होनी चाहिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या जिन लोगों को अमीर बनना है उन लोगों के लिए इमोशनल वैल्यू गाड़ी को लेकर नहीं होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. सेकेंडली, अगर तुम 1000 किलोमीटर चलाते हो तो बाकी कुछ फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स रहेंगे और पेट्रोल के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो इट विल बी अराउंड 30 रुपीज पर किलोमीटर. तो अगर तुम 1000 किलोमीटर महीने की चलाते हो मतलब 12,000 चलाते हो. एंड दिस इज द एवरेज विच वी हैव सीन कि ऑन एन एवरेज हम लोग 12,000 किलोमीटर साल की चलाते हैं गाड़ियां. ऑलराइट, देयर आर वेरी लेस पीपल जो पेट्रोल गाड़ी को 12,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं. और अगेन ये यहाँ पर जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है ये पर किलोमीटर मेरे ख्याल से 3-4 रुपए और बढ़ गया, तो यू आर एक्चुअली पेइंग 34 रुपीज पर किलोमीटर. ओके, अगर तुम 1000 किलोमीटर चला रहे हो. और 1500 किलोमीटर पे 22 रुपीज है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पेट्रोल रेट. पर न्यू पेट्रोल रेट के हिसाब से ये खर्चा आ जाएगा तुम्हारा 25 रुपीज से 26 रुपीज पर किलोमीटर. एंड नाइदर ओला नॉर ऑटो, मतलब ये ओला ऑटो हो गया या कुछ भी हो गया, कहीं पर भी तुमको इतना बड़े एक्सपेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं. बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स कैन ऑपरेट डे इन एंड डे आउट एंड दे ट्रैवल फॉर मोर देन 50,000 किलोमीटर इन पर ईयर. उनके लिए वो कॉस्ट राइट है. बट फॉर इंडिविजुअल लाइक अस, एंड स्पेशली अगर तुमको कोई ऐसा जॉब मिला है जहां पर तुमको पिक एंड ड्रॉप कंपनी से मिलता है, तो तुमको सिर्फ दिखावा करने के लिए ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए. अगेन, यहाँ पर जो भी अमीर लोग हैं उन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि हम अपने पैसे का क्या कर रहे हैं. ऑलराइट, बेसिकली जैसे हमको जॉब लगती है, हमको कुछ लोग मोटिवेट करते हैं कार या घर खरीदने के लिए, एंड देन वी गो इनटू दिस साइकिल जहां पर हम घर या कार खरीद लेते हैं. ऑलराइट, अब घर के लिए क्या है वो मैं अलग से या तो बता दूंगा, बट अभी के लिए मैंने जो कार का एग्जांपल लिया है वो सब लोगों के लिए और भी कोई एग्जांपल हो सकता है. जैसे तुमको कोई यूज नहीं है पर तुम लैपटॉप खरीद लेते हो, अपने आप को फोटोग्राफर दिखाने के लिए डीएसएलआर खरीद लेते हो. ऐसे बहुत सारे फालतू के एक्सपेंसेस हम लोग करते रहते हैं. Okay, so this is one thing which you need to learn, all right, which you need to understand. So this is, you know, one of the reason why you should save money, क्योंकि अगर तुमने पैसे गलत जगह पे लगा दिए तो ये पैसा हर बार डेप्रिशिएट होता जाएगा. एंड वी आर एक्चुअली पेइंग वेरी हाई, मतलब हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं फॉर डूइंग द सेम वर्क. इनफैक्ट मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है, अगर गाड़ी होगी तो फालतू में भी हम घूमने चले जाते हैं. अब वो अगेन डिस्क्रिशनरी है, वो मैं अगेन मेरे जैसे लोगों के लिए और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अलग हो सकता है. बट अगर तुम्हारे दोस्त के पास, बेस्ट फ्रेंड के पास गाड़ी है ऑलरेडी और तुमको लग रहा है कि ये चीजें वहां तक सॉल्व हो सकती है, तो आई डोंट थिंक यू नीड अ कार राइट नाउ. ओके, तो कब खरीदनी चाहिए कार, ये एक अलग से एक अलग ही केस स्टडी है. तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो तुम अपने सेल्फ रूल बना सकते हो. मेरा एक सिंपल फॉर्मूला ऑफ लाइफ है कि आई विल नॉट टेक लोन फॉर एनी कार. ओके, अगर मुझे कार खरीदनी है तो मेरे पास पूरे पैसे होने चाहिए. एंड दैट इज द डे मेरी कैपेबिलिटी है टू बाय अ कार. दिस इज व्हाट आई फील. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे आसपास 90% लोग वो लोन पर ही गाड़ियां खरीदते हैं और अपने आप को रिच बताते हैं, इसलिए हमको भी लगता है कि यही सिस्टम राइट होगा. ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जितना भी हम पैसा कमाएं. अगेन मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, तुमको 40,000 सैलरी हो या 60,000 हो या 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट, क्योंकि आफ्टर 10 years ये नहीं होगा कि तुमने कितना कमाया, ये होगा कि तुमने कितना बचाया और कितना इन्वेस्ट किया. ओके, और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है. ऑलराइट, सो आई विल शेयर अ पीपीटी जिसमें हम क्विकली देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. ऑलराइट, सो तो ये कुछ कॉमन चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. ठीक है, अवॉइड बाइंग हाउस, जो भी तुम्हारे फालतू के एक्सपेंसेस है वो तुमको अवॉइड करना चाहिए. ऑलराइट, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू आर वाचिंग मतलब ऑन मोबाइल और ऑन लैपटॉप, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, तुमको लगेगा सर ने अभी एफएमसीजी और फार्मा बोला है, बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग, जितने भी लोग यहाँ पर अमीर बनने वाले या जितने भी लोग आगे बहुत कमाने वाले, अमीर तो नहीं बनने वाले बट बहुत कमाने वाले, शायद तुम 1 लाख रुपए पर मंथ तक भी पहुंच जाओ अगले 5 सालों में, बट यू विल सी दैट वॉट एवर यू अर्न, बहुत सारा पैसा, हमारा जो पैसा है ये गलत, मतलब ये बैंक के पास ही पहुंच जाता है. ऑलराइट, तो 50% ऑफ बैंक,
50% for bank, which directly means you are working for builders, car, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एंड अदर लग्जरी आइटम। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम लोग लोन ले लेते हैं। तो 50% जो हमारा पैसा है ये बैंक की ईएमआई में निकल जाता है, और बैंक की ईएमआई के थ्रू हम कुछ और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जिस बिल्डर ने वो बिल्डिंग बनाई उसके लिए काम कर रहे हैं, जिस कार मैन्युफैक्चरर ने कार बनाए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाए और कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमारे लाइफ में एक्चुअली यूजफुल नहीं है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और फिर कुछ लग्जरी ब्रांड है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सो 50% हमारी सैलरी, अगर तुम कुछ लोग हैं जो 35-40 के अगर है यहाँ पर, तुम देखोगे अपना जो पैसा है वो एक्चुअली इन जगहों पर ज्यादा जा रहा है। तो ये 50% ऑफ सैलरी को हमको बचाना है, 50% ऑफ इनकम को हमको बचाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है 10% से लेकर 30% तक गवर्नमेंट ले लेती है, इनफैक्ट 30 से ज्यादा ही लेती है, क्योंकि जीएसटी को मैंने ऐड नहीं किया है इसमें, सिर्फ हमारे जो डायरेक्ट टैक्स है उसको मैंने रखा था। तो जीएसटी मिला के तो 45% के आसपास या 50% के आसपास हम लोग टैक्स ही भर देते हैं। ऑलराइट, तो 10% to 30%, जैसे गाड़ियों पर अगर तुम सीडान गाड़ी लेने जा रहे हो तो 43% तक टैक्स है, और अगर तुम फॉर्च्यूनर लेते हो तो 50% तक टैक्स है, जीएसटी है मतलब। तो 50% तो सिर्फ जीएसटी है, इसके अलावा तुम डायरेक्ट टैक्स भरते हो। तो एक कार, अगर तुमको आज एक 15 लाख की गाड़ी खरीदनी है, एक्चुअली तुमको 22-23 लाख कमाने पड़ेंगे, और फिर 7 लाख पहले गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद 15 लाख रुपए कार कंपनी को देना है, उसके बाद तुम उस कार को एंजॉय करोगे, फिर तुम उसके अंदर फ्यूल डालोगे जिसके अंदर भी ऑलमोस्ट 50% टैक्स है, 50 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से। ओके, सो व्हाट आर यू वर्किंग फॉर? तुम्हारा जो पैसा है ये बैंक के पास चला जाता है, ये बिल्डर के पास चला जाता है, ये कार कंपनी के पास चला जाता है, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और जो गवर्नमेंट को देना वो कंपलसरी है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज द। उसके बाद जो मैंने देखा है, अगर कोई भी 35 से 45 के बीच के कपल्स है, ऑलराइट, उनका 10 to 15% ऑफ देयर इनकम गोज इन स्कूल और एजुकेशन सिस्टम। वो तुम्हारी ट्यूशन हो गई, बायजूस के ऐप लेने पे हो गई, या हमने अभी कोरोना के दौरान बहुत लोगों को मोबाइल खरीदने पड़े अपने बच्चों के लिए, वो सब इंक्लूड अगर हम करते साल के एक्सपेंसेस में या साल की सैलरी में, ऑलमोस्ट सैलरी का 10 to 15%, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर दोनों भी कमा रहे हैं तो 10 to 15% सिर्फ एजुकेशन में ही चला जाता है बच्चे की, और इसमें अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो तो शायद ये ज्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज देयर। उसके बाद 20 to 25% हमारी बेसिक नेसेसिटी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में ही चला जाता है। ऑलराइट, उसके बाद अगर तुम्हारे घर पर एल्डरली पेरेंट्स हैं तो 10 to 15% आराम से फार्मा सेक्टर को दे देते हो, तुम हेल्थ केयर सेक्टर को दे देते हो, हॉस्पिटल सेक्टर को दे देते हो। अब तुम अगर मेडिक्लेम नहीं है तुम्हारे पास तो ये होना बहुत नॉर्मल है, और अगर तुम 5 साल का एवरेज निकालोगे, अगर एक बार भी गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद में 10 to 15% हम लोग मॉल और ऑनलाइन कंपनी को दे देते हैं, जिसमें हम यूजलेस चीजें खरीदते हैं। ऑलराइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू अवॉइड दिस इज टू स्टॉप नोटिफिकेशन। तुम अगर ऐप डिलीट कर सकते हो तो सबसे अच्छा, बाकी एटलीस्ट तुमको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। इसके अलावा जो भी तुम प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम करते हो इंफॉर्मेशन को, अगर उस प्लेटफॉर्म में एक फीचर है कि तुम ऐड को रोक सकते हो तो प्लीज स्टॉप द एड्स। जैसे यूट्यूब में यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हो, जिससे तुमको ऐड दिखना बंद हो जाएगा, जिससे तुम्हारी ये जो फालतू की खरीदी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऑलराइट, एंड 20 to 25% अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं जो हमको खुद को ही नहीं पता होते कहाँ जा रहे हैं। ऑलराइट, अब इसके वजह से क्या होता है, अगर तुम ये टोटल करोगे ना तो 100% इनकम पे हम 130 से 140% स्पेंड कर रहे हैं, एंड एवरी मंथ हमको और पैसे की जरूरत पड़ती है। ओके, और हमको और पैसे की जरूरत पड़ी, हम फिर बैंक के पास पहुंच जाते हैं, और ये साइकिल से हम निकल नहीं सकते। और इस साइकिल को हम लोग रैट रेस बोलते हैं, जिसमें हम बैंक को ही या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को या गवर्नमेंट को या स्कूल्स को या हमारे एफएमसीजी फार्मा कंपनी को पैसा देते रहते हैं, और लोन ले लेकर उस चीज को चुकाते रहते हैं। तो अगर हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, इन लोगों के पास है, अगर मेरे फ्यूचर के 20 साल एक बैंक को ही दे, मतलब 50% ऑफ माई इनकम विल गो टू बैंक एंड 30% टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम वर्किंग फॉर द बैंक। ऑलराइट, आई एम वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। और कोई भी पर्सन अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो ऑलमोस्ट सैलरीड इनकम, स्पेशली बिजनेसमैन तो फिर भी बहुत सारी चीजें कर अपना टैक्स बचा सकते हैं, बट सैलरीड इनकम में अगर तुम 15 लाख से ज्यादा कमाते हो तो 20% से लेकर 30% तक तुम गवर्नमेंट, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। ओके, आज हमारे वाइफ, हमारे मम्मी अगर कोई एक चीज एक्स्ट्रा मांग ले हमसे तो हम 2 बार सोचते हैं, बट गवर्नमेंट को देने से पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते, बिकॉज दैट इज कंपलसरी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी राइट चीज पे अगर खर्चा करना पड़े तो वो ज्यादा जरूरी है।
ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू, कि हम सोच रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएंगे, परंतु तुम नहीं निकल सकते हो, क्योंकि वो वापस तुमको वहीं पर लेकर आ जाएगा। ऑलराइट, अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? ऑलराइट, तो आई विल जस्ट स्टॉप दिस थिंग। ओके, so as we discussed, why are we getting educated? Is education worth the time? So I personally feel education is important, but right education is more important, and right education पे हमको focus करना चाहिए. Things which are not covered in education system, we are done with that. Okay, and we need to learn money. All right, so I'll just take some important things we'll cover in this slide. Okay, so I have made a 3-step theory. Okay, 3-step plan to become rich. All right, अब तुमको मैंने पहले बताया है कि the most important thing is we need to avoid यूजलेस एक्सपेंसेस. अगर हमारे कोई भी यूजलेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको हमको अवॉइड करना है. ओके, उसके बाद में जो भी इनकम आती है तुमको, अगर तुम्हारी सैलरीड इनकम है तो यू कैन बाइफरकेट दैट सैलरीड इनकम इन 3 पार्ट्स, 40, 40 एंड 20. ओके, जिसमें 40% विल बी योर एक्सपेंसेस. कोई भी पर्सन जितना भी वो कमाता है, अगर 40% से ज्यादा वो एक्सपेंस करता है, और ये आफ्टर टैक्स सैलरी की बात कर रहा हूं, तो जो गवर्नमेंट को देना हो तो कंपलसरी एक्सपेंसेस है, बट इसके अलावा जो एक्सपेंसेस है वो 40%, मतलब अगर तुम्हारी सैलरी 1.2 लाख है और अराउंड 30,000 टैक्स, या 1.3 लाख है और 1 लाख रुपीज इन हैंड सैलरी है, तो तुमको 40,000 के ऊपर खर्चा नहीं जाने देना, जो हमारा डे टू डे एक्सपेंस है, जो हमारा फूड क्लोथिंग के लिए लगता है. शेल्टर के लिए ईएमआई कैसे भरनी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और शेल्टर अगर रेंट पे है तो प्लीज इंक्लूड दैट एंड यू विल बिकम रिच वेरी सून. ऑलराइट, दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट. तो दूसरा जो 40% है, यू शुड कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. और ये फॉर्मूला मैं जनरल दे रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए अलग भी हो सकता है. जैसे अ पर्सन लाइक मी, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़े कम है, तो मैं ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ माई इनकम इज सेव्ड, आफ्टर टैक्स इनकम इज सेव्ड. ओके, वैसे ही तुम लोग अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, जहां पे तुम्हारा कोई रेंट का एक्सपेंस नहीं है, तुम्हारे मम्मी तुमको खाना बनाकर दे देती है, तो अगर उस चीज के वजह से ऑटोमेटिकली जब तुम काम पर लगोगे, और अगर तुम इंदौर में ही हो, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम इंदौर, तो अगर तुम इंदौर में ही हो और इंदौर में ही जॉब मिल जाती है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज ना तो तुमको रेंट लगेगा, ना तुमको दूसरे एक्सपेंसेस लगेंगे. ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट मोर. तो पर मैं एक जनरल रूल देता हूँ, अगर तुम सपोज तुमको पूना या मुंबई में जॉब लग गया, उस केस में तुम्हारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तुमको ये ध्यान रखना है कि हमारे एक्सपेंसेस इस ब्रैकेट को क्रॉस नहीं करने चाहिए. तो अगर मेरी 50,000 सैलरी है, तो मैं सिर्फ 20,000 रुपीज सेव कर सकता हूँ, और उस 20,000 में भी मैं रेंट को सिर्फ 5 से 7,000 दे सकता हूँ, बिकॉज मुझे 13,000 में बाकी का जो एक्सपेंसेस है वो हैंडल करना है. ऑलराइट, जो दूसरा 40% है, यू शुड इन्वेस्ट. तो कोई भी 50,000 इन हैंड सैलरी कमाने वालों का एक्सपेंसेस मिनिमम 20,000 पर मंथ, तो एटलीस्ट उनको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, इट इज कंपलसरी. और बाकी की 20% यू कैन यूज इट फॉर लग्जरी. अब लग्जरी में भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर इन अ शो बिजनेस, तुम मार्केटिंग में हो, तुमको कपड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कपड़ों पे जो खर्चा करना है, एक तरीके से वो लग्जरी खर्चा हो गया. अगर तुम सुपर ब्रांडेड कपड़े खरीदने जाते हो, और अभी मैंने लेटली देखा है कि द कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स हैव गॉन अप ड्रास्टिकली. ओके, कल मैं शॉपिंग करने गया था, और एलन सोली का एक नया कलेक्शन आया था, जिसमें 4,500 से शर्ट चालू होते हैं. ओके, तो ये मेरे लिए एक तरीके की लग्जरी हो गई है. ओके, तो ये लग्जरी पे 20% से ज्यादा नहीं करना है. और तुम्हारे जो भी कार लोन, अगर तुम कार लोन ले भी रहे हो, तो उसकी ईएमआई इसी 20% से जानी चाहिए. तो अगर तुम्हारी 50,000 सैलरी है, तो 10,000 के ऊपर ईएमआई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो है तो तुम बहुत जल्दी तकलीफ में आ जाओगे, बिकॉज एक एक मिस्टेक और एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई रेकमेंड. ऑलराइट, उसके बाद मैंने इस 40% का, ठीक है, इस 40% का मैंने एक और पार्ट बनाया हुआ है. इस 40% में तुम अपने इन्वेस्टमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ऑलराइट, दैट इज 40, 30, 20, 10. ठीक है, ये 4 पार्ट अलग अलग लोगों के लिए थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट मैंने एक जनरल रूल बनाकर रखा हुआ है. इफ यू डू दिस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ऑलराइट, तो 40% शुड बी इन इक्विटी, 30% शुड बी इन डेट, 20% शुड बी इन गोल्ड,
and 10% it can be in risky investments. अगर तुम्हें एक जनरल रूल चाहिए तो ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको कुछ स्टैंडर्ड चीजों में ही रहना पड़ेगा, दे कैन नॉट डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो भी तुम्हारा 1 लाख रुपए है, वो जो 40% उसमें से बच जाएगा, उस 40% को तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ऑलराइट, और 40 30 20 10 में डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ बेटर हो जाएगा, ऑलराइट। सो 40 30 20 10, इसका मैंने एक और थियरी बनाया, एज आई टोल्ड यू, द 3 स्टेप थियरी। तो द स्टेप 1, now what is the mistake people do is people don't work on getting rich, okay, they work on copying people, ऑलराइट। ये एक बहुत अजीब चीज है जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया, और शायद मैं भी करता था जब मैं थोड़ा एज में छोटा था। वी ट्राई टू कॉपी अदर्स। अब मेरे यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने 2020 में जब टाटा मोटर्स के शेयर्स गिर गए थे तो 80 रुपीज में वो शेयर खरीद लिए। अब वो शेयर 450 के हो गए, तो मेरे दूसरे दोस्तों ने क्या किया, 450 में उन शेयर्स में एंट्री ले ली। ओके, सो एक बहुत बड़ी सीख है इससे कि दूसरों को कॉपी नहीं करना है, हमको अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना सीखना पड़ेगा। और तुम कितने भी इन्वेस्टमेंट्स कर लो, एंड ऑफ द डे एक प्रॉब्लम भी घर में आई तो तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे वो लेकर चले जाएगी। जैसे अगर मैंने प्लान किया है कि मैं SIP करता हूँ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए पर मंथ की अगले 20 सालों के लिए, अमीर बनने के लिए, ठीक है, देयर इज अ रूल कॉल्ड 15-15-15। अगर तुम 15,000 15 इयर्स तक करो और 15% रिटर्न आए तो तुम्हारे 1 करोड़ जमा हो जाएगी। ओके, सो जस्ट अगर लिखना है तो अलग से लिख लेना, 15-15-15 रूल है। द इशू इज, अगर मैं एक वर्किंग मेल हूं और मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और मेरे 2 बच्चे, ऑलराइट, अगर इस केस में ये जो 15-15 रूल हमको सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम कर भी लेंगे, 50,000 इनकम में से 15,000 सेव करना है, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी बिग इशू। बट द इशू इज, अगर 3 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया तो, या मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हॉस्पिटल का बिल 10 लाख आ गया तो, ओके, सो बिफोर, अगेन आई एम सेइंग, बिफोर यू ग्रो योर मनी, पहले पैसे को बचाना सीखो। तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि किन जगहों पर हमारे खर्चे हो सकते हैं और किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सो स्टेप 1 इज टू टेक केयर ऑफ टू प्रोटेक्ट योर मनी वाया इंश्योरेंस, ऑलराइट। अब इंश्योरेंस में क्या क्या तुमको लेना चाहिए, तो सबसे पहले तुमको मेडिक्लेम लेना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख रुपीज, एटलीस्ट 10 लाख रुपीज। जो भी लोग लिख रहे हैं प्लीज कीप राइटिंग बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग। और अगर तुम्हारे कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, प्लीज कीप इट रेडी, ओके। आफ्टर अराउंड 1.5 आवर ऑफ दिस सेशन वी विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, तो तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछना है। तो प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन योर बुक और ऑन अ पेपर सो दैट यू कैन आस्क इट लेटर, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग है मेडिक्लेम। तो फर्स्ट चीज तो है मेडिक्लेम लेना है तुमको, इनफ मेडिक्लेम लेना है, तो 10 लाख तो मिनिमम है, ऑलराइट। अब 10 लाख रुपए एक ऐसा एक्सपेंस है जो तुमको 3 4 5 सालों में एक बार लग जाएगा या 10 सालों में लग जाएगा। तो पहली बात तो मेरा जो पर्सनल कैलकुलेशन है, मेडिक्लेम इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेडिक्लेम के लिए जो तुमने पैसे भरे वो कभी तुमको लॉस में रहेगी। हाँ, 1 साल में लॉस हो सकता है, 2 साल में लॉस हो सकता है, पर एक बार भी तुम हॉस्पिटलाइज हो गए तो जितना पैसा तुमने मेडिक्लेम कंपनी को दिया हुआ है उससे ज्यादा पैसा तुम रिसीव कर लोगे। ओके, जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, मेरे डैड और मॉम ने 2007 में व्हेन आई कंप्लीटेड माय BMS, उसके बाद में मैं फर्स्ट जॉब जो किया था मैंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में किया था, ओके। एंड उसमें मुझे मेडिक्लेम के बारे में समझाया गया, तो मैंने मेरे मॉम डैड के लिए मेडिक्लेम खरीद लिया था, मेरे लिए भी खरीदा था, ऑलराइट। और 13 साल से वो प्रीमियम भर रहे थे। 13 साल में मेरी मम्मी का सिर्फ एक क्लेम आया था, ऑलराइट। एंड एवरी ईयर माय डैड वाज पेइंग 20,000 25,000 30,000 35,000। लास्ट ईयर तो हमने ऑलमोस्ट 45,000 पर ईयर भरा, ऑलराइट। अब 13 सालों में कोई बड़ा क्लेम नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली जनवरी 2021 से 22 से लेकर अभी तक मेरी मम्मी अनफॉर्चुनेटली उनको डायबिटीज है, तो 4 टाइम्स एडमिट हो गई और 4.5 लाख रुपए उनका टोटल एक्सपेंस हो चुका है ऑलरेडी, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम। और मेडिक्लेम में तुमको एज आई टोल्ड यू लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूं तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक सर्जरी हुई थी मेरी, जिसका खर्चा ऑलमोस्ट 1.94 लाख रुपीस हुआ था, ऑलराइट। और उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ 2 लाख का मेडिक्लेम था। अगर मेरे पास उस 2 लाख का मेडिक्लेम नहीं होता उस टाइम पर, तो मैं तुमको एक चीज बोल सकता हूं, मैं मेरी लाइफ में एटलीस्ट 1 से 1.5 साल पीछे चला जाता। मतलब मुझे किसी से उधारी लेकर ये ऑपरेशन करना पड़ता, और फिर अगर मैं ईमानदार हूं और मैं उसको चुका देता हूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर अप। तो प्लीज ट्रीट इंश्योरेंस एज अ सेफ्टी इन्वेस्टमेंट rather than as a cost,
इंश्योरेंस को कॉस्ट बोलना जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक तुमको कभी भी इंश्योरेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि अगले 40 सालों में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे कोई बड़ा खर्चा आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे किसी को कैंसर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए। ओके, क्रिटिकल इलनेस में 64 क्रिटिकल इलनेस है जिसमें खर्चे 10 लाख से ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, सो देयर आर फ्यू कंपनीज इन मेडिक्लेम, ठीक है, जो सुपर टॉपअप बेचती है। सुपर टॉपअप क्या होते हैं? ये बहुत चीप प्लान होते हैं जो 11 लाख से चालू होती है या 10 लाख से चालू होते हैं और वो तुमको 1 करोड़ तक का कवर दे सकते हैं। ऑलराइट, अगेन द कॉस्ट ऑफ सुपर टॉपअप इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल मेडिक्लेम। अगर नॉर्मल मेडिक्लेम का 10 लाख का खर्चा आ रहा है, सपोज अभी जो खर्चा तुम लोगों की एज पर आता है वो अराउंड 8,000 रुपीज के आसपास आता है, तो सुपर टॉपअप का जो प्लान है इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का टॉपअप मिल जाता है तुमको। सिर्फ 1,000 रुपए में तुमको ये मिल जाएगा। 90 लाख का इंश्योरेंस ऐड हो रहा है इसमें। ओके, सो 10 लाख तुम्हारी पहली कंपनी जो भी मेडिक्लेम दे रही उसका हो गए और पीछे से 90 लाख हो गए ये सुपर टॉपअप वाली कंपनी के। ये दो अलग कंपनी भी हो सकती है, ये दो सेम कंपनी भी हो सकती है, सो दैट इज डिफरेंट। ऑलराइट, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा कॉस्ट देना पड़ता है। एट माई पेरेंट्स एज ये कॉस्ट है अराउंड 6,500 से 7,000 रुपीज, और ये 65 की उम्र तक ही मिलता है। तो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स 65 के नहीं हो जाते, यू शुड हैव दिस कवर कॉल्ड सुपर टॉपअप। तो पहले तो हमको मेडिक्लेम लेना है, उसके बाद सुपर टॉपअप लेना है। ऑलराइट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंश्योरेंस में जो है वो है एवरी अर्निंग मेंबर इन द फैमिली शुड हैव अ टर्म प्लान। अगर कोई भी पर्सन कमाते हैं तो उनका टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। जो जिन लोगों को टर्म प्लान का मतलब नहीं आता है तो उनको मैं बता देता हूँ, इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसमें तुम एक छोटा सा प्रीमियम देते हो, ठीक है, और अनफॉर्चुनेट डेथ पे तुम्हारे नॉमिनी को एक सम अश्योर्ड मिल जाता है। ओके, तो अगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी डेथ हो जाती है तो तुम्हारे नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिल जाता है। पर इसमें एक कंडीशन है कि अगर तुमको कुछ नहीं होता है फॉर दैट पीरियड, अगर तुम 60 की ईयर्स तक लेते हो तो 60 की ईयर्स तक, 85 की ईयर्स तक लेते हो तो 85, 99 की ईयर्स तक लेते हो, तो अगर तुम्हारी डेथ होती है तो तुमको सम अश्योर्ड मिलेगा। बट अगर तुम अलाइव रहते हो तो तुमको सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा, तुमको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। बट in order to safeguard this there are few people who have come up with various plans जिसमें तुमको जो अगर तुम जिंदा भी रह जाते हो, मतलब अगर तुम नहीं मरते तो तुमने जो भी प्रीमियम दिया है वो रिटर्न मिल जाएगा। तो बेसिकली यू आर नॉट इवन गिविंग मनी टू द कंपनी। तुमने जितना भी इन्वेस्ट किया है, जब पॉलिसी टर्म खत्म होगा और जब जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है विद द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जिस दिन खत्म होगा उस दिन तुम्हारा प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम 85 तक नहीं लेना चाहते हो, 99 तक नहीं लेना चाहते हो, प्लीज टेक दिस प्लान फॉर और टिल द एज ऑफ 65। तो अगर तुम्हारे डैड 45 इयर्स के हैं तो उनको अगले 20 सालों के लिए अपने आप को इंश्योरेंस लेना चाहिए, सो दैट तुम्हारे फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। अब अगेन हु शुड टेक इट? तो देयर आर 3-4 थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर तुम अपने फैमिली को तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे साल के एक्सपेंस का 20 टाइम्स हाथ में देकर जा सकते हो तो तुमको टर्म प्लान लेने की जरूरत नहीं है। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर तुम्हारे जो ईयरली एक्सपेंसेस है वो 5 लाख रुपीज है, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें तुम्हारा घर इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर 5 लाख के एक्सपेंसेस है तुम्हारे साल के, ठीक है, तो तुम्हारा सम अश्योर्ड 1 करोड़ का होना चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम। अगर तुमको 2 करोड़ चाहिए तो 2 करोड़ के लिए भी तुम प्लान कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम यू शुड गिव टू योर पेरेंट्स, to your wife and to your children. This is a basic security which every person should buy, not because कि इसमें कॉस्ट लग रहा है या ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है पैसा, बट बिकॉज योर फैमिली सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ऑलराइट, और अगेन मैंने तुमको बोला जो 15-15-15 का रूल था, तो उसमें 1 करोड़ 15 साल बाद बन रहे हैं, पर अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारी वाइफ 1 करोड़ से चालू करेगी, तुम्हारे मम्मी पापा 1 करोड़ से चालू करेंगे, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट चालू होने के टाइम पर ही 1 करोड़ से चालू हुआ है। ठीक है, तीसरा एक और चीज जो मैंने यंग लोगों में देखा है, वो अपने डैड के बिजनेस में नहीं जाते हैं या डैड से पैसा लेना प्रिफर नहीं करते हैं, या दवरी को बहुत गलत नजरों से देखा जाता है। तो मैं थोड़ा ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ विच मे बी रॉन्ग फॉर सम ऑफ यू, बट आई पर्सनली फील कि डैड से अगर कुछ पैसे आ रहे हैं और अगर तुम्हारे डैड को सर्विस देने की नीयत है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सेम चीज मैं ससुर और सास के लिए भी बोलूंगा। अगर वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं, डोंट feel bad to take it, just take it and invest that money in the right way. अगर उनको जरूरत पड़ी तो हम रिटर्न दे देंगे उनको। Okay, this is my personal
व्यू अबाउट लाइफ। ओके, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, बट अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है तो मैं उसको मना नहीं करता, वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरी वाइफ के पेरेंट्स हो, या कोई दूसरा पर्सन हो। आई एम रेडी टू टेक मनी फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज दैट इज वॉट विल मेक मी फाइनेंशियली स्टेबल, इफ नॉट रिच। आई थिंक स्टेबिलिटी पहले चाहिए। तो मैंने ये सब चीजें पहले की है बिफोर आई गो एंड बिफोर आई जंप टू इन्वेस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रहे हो, सोच रहे हम लोग अमीर हो जाएंगे। तुम शायद अमीर होगे अगर तुम टाटा मोटर्स के शेयर खरीदोगे, बट अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो तुम्हारा वेल्थ या तो इरोड हो जाएगा। बिकॉज अगर तुमने मेडिक्लेम नहीं खरीदा, एक बार हॉस्पिटलाइज होने पर तुम्हारे सब पैसे वो लोग ले लेंगे। ठीक है। अगेन द थर्ड थिंग विच यू नीड टू टेक, जो भी तुम्हारे पास व्हीकल है उनका पूरा इंश्योरेंस लो। बहुत सारे लोग पूरा इंश्योरेंस नहीं लेते। ओके, कुछ लोग सिर्फ टीपी पॉलिसी लेते, थर्ड पार्टी ले लेते, क्योंकि हमको पुलिस वाला सिर्फ टीपी पॉलिसी के लिए बोलता है। बट एवरी टाइम यू गो ऑन रोड, अगर तुम एक अच्छे ड्राइवर हो, फिर भी तुम्हारी गाड़ी को कोई भी ठोक सकता है, और उसके बाद में तुमको पता है ऑलरेडी दूसरों से इंश्योरेंस लेना कितना डिफिकल्ट है। तो इसमें एक और पॉलिसी आती है जिसको बोलते हैं जीरो डेप्थ। ठीक है, जीरो डेप पॉलिसी, तुम्हारे जितनी भी कार और बाइक है उनके लिए जीरो डेप पॉलिसी लो। इसमें तुमको सिर्फ 1,000 रुपए देने होते हैं, बाद में कितना भी खर्चा उस कार पे, तो ये हो जाता है। और अभी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं तुमको। बैंगलोर में एक पर्सन के पास फोक्सवैगन की वेंटो थी, टॉप मॉडल, आई थिंक डीजल टॉप मॉडल, 11 लाख की गाड़ी है। और बैंगलोर में जो तुम ऑनलाइन जाकर चेक भी कर सकते हो, उसके गैराज वाले ने उसको, मैकेनिक ने उसको 22 लाख का बिल दिया है। अगर इस गाड़ी को ठीक करना है तो 22 लाख रुपए लगेंगे। ओके, तो क्योंकि फोक्सवैगन के पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। ऑलराइट, सो व्हीकल के लिए तुमको जीरो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज गो आस्क योर एडवाइजर। तुम हमसे ले रहे हो तो ठीक है, हम तो तुमको बताएगी, पर अगर तुम किसी बाहर वाले से भी ले रहे हो, उनको बोलो जब तक जीरो डेप एप्लीकेबल है तब तक मुझे जीरो डेप दो। पहले ये 5 सालों के लिए था, अब कुछ कंपनी 10 सालों तक भी देती है अगर तुम्हारा क्लेम नहीं हुआ है तो। ऑलराइट, तो इसमें कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन को तुमको समझना पड़ेगा। तो दैट इज देयर। इसके अलावा तुम्हारे डैड अगर बिजनेसमैन है और उनका कोई वेयरहाउस है, तो फायर इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फायर इंश्योरेंस नाम से तुमको लगेगा सिर्फ फायर कवर होता है, बट इसमें 12 चीजें कवर होती है। तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर फायर इंश्योरेंस लिया और फ्लड हो गया और उसकी वजह से तुम्हारे डैड के का जो गोडाउन में माल पड़ा हुआ था वो खराब हो गया, तो भी वो कवर्ड है। ओके, तो फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड की शॉप है, ठीक है, तो तुमको शॉपकीपर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर तुम्हारे डैड ज्वेलर है तो ज्वेलरी के लिए एक अलग से इंश्योरेंस आता है, वो लेना चाहिए। व्हाई दिस इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज 10, 12, 15, 20 हजार से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इन चीजों में कोई भी गलती हो गई तो तुमने जो वेल्थ प्लानिंग की है अपने लिए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो तुमको 1 करोड़ बनाना है, 2 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, पहले अपने वेल्थ को बचाना सीखो। उसके बाद में जो हमारे पास अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसको बचाना सीखो। आई वुड रिकमेंड एवरी पर्सन बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन, प्लीज टेक इंश्योरेंस फॉर दैट ऑल्सो। एवरी, स्पेशली एप्पल के लिए तो खास करके ये सजेशन है। ओके, और एप्पल का पर्सनल जो इंश्योरेंस कवर है बहुत महंगा है, बट देर आर फ्यू कंपनीज जहां पर तुमको यही कवर 1/3 प्राइस में मिल जाएगा। जैसे मैंने क्रोमा से एप्पल आईफोन लिया था, तो जो एप्पल 8,000 रुपए में इंश्योरेंस दे रहा था फॉर एक्सटेंडेड वारंटी, जिसको बोलते हैं वो इंश्योरेंस ही है। तो एक्सटेंडेड वारंटी सब चीजों की जहां पर भी मिले ले लिया करो, बिकॉज तुमको नहीं पता 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से तुम्हारे 40-50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए बच सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके, सो मोबाइल फोन, लैपटॉप, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल तुम लेते हो, अगर वो इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो यू कैन अवॉइड इट। बट क्योंकि ये इंश्योरेंस बहुत सस्ते में मिल रहा है, जैसे आज तुम 1 करोड़ का कवर नॉर्मल मेडिक्लेम में लेने जाओगे तो उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है फ्रॉम फॉर 10 लाख वाला में। बट अगर तुम सुपर टॉपअप लेते हो तो वो 10 टाइम्स कम हो रहा है एक्चुअली। सिर्फ 1,000 रुपए में तुमको 1 करोड़ का कवर मिल रहा है। 1,000 रुपए हम लोग कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो भी जीरो हो जाते हैं, हम पार्टी करने जाते हैं तो भी जीरो हो जाते हैं। ओके, तो उस केस में हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड टेक केयर ऑफ। और अपने पापा को, अगर तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है तो आज जाकर तुमको घर पर पूछना है उनको कि पहले उनके पास टर्म प्लान है या नहीं, दूसरा उनके पास जो भी व्हीकल है उनके फुल इंश्योरेंस है या नहीं, सिर्फ टीपी नहीं, फुल इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का। ठीक है, और उसके बाद अगर उनका उनका बिजनेस है वेयर ही हैज मैन्युफैक्चरिंग या गोडाउन वगैरह सर्विसेज है तो उनको फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर उनकी शॉप है तो उनको शॉपकीपर इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर तुम, और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर तुम हाउस होल्ड पॉलिसी आती है, तो इस हाउस होल्ड पॉलिसी में तुम्हारे लैपटॉप, मोबाइल फोन, फ्रिज सब एक साथ भी कवर हो सकते हैं। तो बजाज की एक पॉलिसी आती है हाउस होल्ड पॉलिसी, जिसमें तुम्हारे आईफोन भी कवर्ड होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आईफोन के इतने क्लेम आए
कि बजाज ने आईफोन को उसमें एक्सेप्शन में डाल दिया है, बट हाउस होल्डर पॉलिसी अगर लेते हो तो साल का शायद 2,500-3,000 रुपया, साल का 2,500-3,000 रुपया खर्चा होता है, बट यू विल बी टेकन केयर ऑफ। अब तुम इन सबका टोटल मारोगे तो तुमको 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगने वाले। तो जो भी लोग यहाँ पर 10-15 लाख या 20-25 लाख रुपए कमाने वाली कैटेगरी से, उनके लिए तो 1 लाख रुपया बड़े नहीं है। और जो लोग 5-6 लाख कमाने वाले कम्युनिटीज हैं, उन लोग को लगेगा सर 5-6 लाख में से मैं 1 लाख कैसे दे दूं। तो मैं बोलूंगा कि तुम 1 लाख मत दो, तुम 50,000 दो, बट प्लीज हैव बेसिक इंश्योरेंस फॉर ऑल द थिंग्स। और जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, जब भी तुम ज्यादा कमाना चालू करोगे, तब बाकी की चीजें ले लिया करो। ओके, सो दैट इज द स्टेप 1। ओके, तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है, वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू बाय सिक्योरिटी फॉर आवर फ्यूचर एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस बहुत बड़े होते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो कि तुम इन चीजों का ध्यान रखो। ऑलराइट, सो दैट इज द स्टेप 1। ऑलराइट, उसके बाद में हम चलते हैं स्टेप 2 पे। तो व्हाट शुड यू डू इन स्टेप 2? अब यहाँ पर मैं तुमको कुछ स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स बोल रहा हूँ जो तुमको करने चाहिए। ऑलराइट, तो उसमें से जो पहला चीज तुमको करना चाहिए, पहले तुमको, क्योंकि तुम्हारे रिस्क प्रोफाइल क्या है वो तुमको निकालना है। और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अगर तुम्हारे रिस्क प्रोफाइल मीडियम या लो रिस्क प्रोफाइल है, मतलब तुम ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उस केस में मैं तुमको जो स्टेप 2 बोल रहा हूं वहां तक ही तुमको रहना है, तुमको स्टेप 3 पर नहीं जाना है। अगर तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल मीडियम या लो आती है तो तुमको स्टेप 2 पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेप 3 तक नहीं जाना है। ऑलराइट, तो स्टेप 2 में क्या क्या है? तो सबसे पहले डेट मार्केट। डेट मार्केट मतलब जहां पर भी तुमको गारंटेड रिटर्न्स मिले। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये तुमको एफडी में मिल जाते हैं, ये तुमको एफडी में मिल जाते हैं, ये तुमको इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर मिल जाते हैं, ये तुमको पीएफ के अंदर मिल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग में मिल जाते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जहां पर भी तुमको गारंटेड रिटर्न्स मिले वहां पर तुमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितना करना चाहिए मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जितना भी तुम, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है, साल भर में सपोज 2 लाख की प्लानिंग है, तो 30% मतलब 60-70,000 तो तुमको डेट में रखना चाहिए। अगर तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी कम है तो यू कैन इंक्रीज इट टू 80,000 और 1 लाख ऑल्सो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ना रिटर्न्स गारंटेड चाहिए, उनको तकलीफ नहीं चाहिए कि कल मुझे कुछ हो जाए। ओके, सो दैट इज देयर। अगेन, अब डेट में ना अलग अलग प्रोडक्ट के लिए टैक्सेशन अलग अलग है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड टैक्स ऑल्सो। अब तुम बोलोगे सर इतना सब हम कहाँ सीखे? तो तुम अगर नहीं सीखना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो, एटलीस्ट क्वेश्चन करो कि अगर मैं एफडी खरीदता हूं तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, मैं इंश्योरेंस खरीदता हूं तो क्या टैक्स है, पीएफ खरीदता हूं तो क्या टैक्स है, पोस्ट ऑफिस सेविंग में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या टैक्स है, कोई डिबेंचर में इन्वेस्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल यू बाय अ डिबेंचर ऑफ एनी कंपनी, उस पे क्या है, उसके बाद डेट फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के फंड्स होते हैं, उसमें क्या टैक्सेशन है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज टैक्सेशन से तुम्हारा वेल्थ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, कम तो हो ही सकता है और बढ़ सकता है का मीनिंग है कि अगर तुमको जीरो टैक्स प्रोडक्ट मिल जाए तो इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सेकंड चीज जो तुमको करनी है उसमें गारंटेड इन्वेस्टमेंट हमको करनी है। ऑलराइट, उसके बाद में द सेकंड थिंग व्हिच यू कैन गो फॉर इज इक्विटी मार्केट एंड ओनली इन लार्ज कैप। ठीक है, अब पहले तुमको इक्विटी मार्केट का मतलब अगर किसी को नहीं पता, यहाँ पर 5-6 लोग ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, एंड आई एम अज्यूमिंग सम ऑफ यू आल्सो डू नॉट हैव इनफ आइडिया अबाउट कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, माइक्रो कैप क्या होता है, मिनी कैप क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब टर्म्स जानने की तुमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलराइट, व्हाई मैं तुमको बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें तुमको मिल जाएगी, एक है निफ्टी 20 और दूसरा है जूनियर 20। अगर तुम्हारे मतलब एज अ पर्सन तुमको नहीं पता कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है, कौन सी कंपनी सेफ है, ठीक है, तो पहले ये समझ लो इंडिया में जो लार्ज कैप का डेफिनेशन है, इट इज टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी टॉप 100 कंपनीज हैं वो इसमें आती है। अब निफ्टी 20 में क्या आता है, एनएससी की तरफ से 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है टू बी इन पार्ट, और ये 50 स्टॉक्स इंडिया के टॉप कंपनीज में से होते हैं। और ये 50 स्टॉक्स में अगर तुम इन्वेस्टेड हो तो ऑटोमेटिक है कि यू विल बी डूइंग वेल, बिकॉज ये 50 स्टॉक्स नॉर्मली अब ऊपर ही जाते हैं। ओके, और ये रिलेटिवली सेफ होते हैं बिकॉज इसमें ये ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ये टॉप 50 में पहुंचे। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने आप को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओवर द लास्ट 40-50 years इट हैज गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है
जो निफ्टी 20 की पार्ट है, जैसे टीसीएस हो गई, इट हैज गिवन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 20% फॉर देयर इन्वेस्टर। आईटी सेक्टर ने वैसे भी अच्छा किया है। अब क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऑलराइट, व्हाट यू नीड टू डू, जो भी लोग लिख रहे हैं प्लीज कीप दिस डीमैट अकाउंट में, डीमैट में मतलब जो भी तुम्हारा ब्रोकर होगा उनके इधर जाना है और निफ्टी 20 को डायरेक्टली खरीद लेना है। ये अराउंड 180-185 के आसपास अभी मिल रहा है, और ये कोरोना के टाइम पर 90 रुपीज का था, तो 90 रुपीज की चीज 180 को गए, मतलब तुमको 100% रिटर्न मिल चुके। आगे ये निफ्टी 20 विल ग्रो अकॉर्डिंग टू निफ्टी, तो निफ्टी अगर ग्रो होता है तो निफ्टी 20 ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तुमको कोई स्टॉक चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम देखते होगे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ये टाटा खरीद रहा हूं, अब मैं इसको बेच देता हूं, इसको खरीद लेता हूं, ये सब शिफ्टिंग तुमको करने की जरूरत नहीं है। एनएससी हर साल 2 बार खराब कंपनी को निफ्टी से निकाल देती है और अच्छी कंपनी को डाल देती है, तो सेम फंड मैनेजर जो इस 50 स्टॉक्स को हैंडल कर रहे हैं उनको भी सिमिलर चीजें करनी पड़ती है, जहां पर वो खराब स्टॉक को निकाल देते हैं और अच्छे स्टॉक को ऐड कर देते हैं। ओके, तो कुछ मतलब कोरोना के टाइम पर ऐसा हुआ था, टाटा मोटर्स वेर गिविंग वर्स्ट रिटर्न्स ऑफ देयर लाइफ टाइम, मतलब 600 रुपए का शेयर 60 रुपए का हो गया था, तो उनको निफ्टी 20 से निकाल दिया गया था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, अब टाटा मोटर्स अच्छा कर रहा है तो उसको मे बी नेक्स्ट साइकिल में वापस भी डाल दे। ऑलराइट, सो निफ्टी 20 में ये ऑटोमेटिक स्टडी है, ये एनएससी खुद करती है, तो हमको करने की जरूरत नहीं। एनएससी कुछ सोच समझ कर ही टॉप 50 कंपनीज को, टॉप 50 तो नहीं बोलना चाहिए, बट जो टॉप 100 कंपनी उसमें से 50 कंपनीज को चूज कर ऊपर डाल देती है। ओके, तो वो निफ्टी 20 का पार्ट है। अब व्हाट इज जूनियर 20? जो भी बची हुई कंपनीज है 51 से 100 कंपनीज, ओके, जो भी बची हुई 100 में से जो 50 स्टॉक निफ्टी 20 में चले गए वो तो इन्वेस्ट हो गए, पर जो बचे हुए 51 टू 100, मतलब उसमें कभी कभी 47 नंबर की कंपनी भी हो सकती है एंड सो ऑन, तो उन कंपनीज में जूनियर 20 इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है सर, क्या रिटर्न्स मिले हैं? तो मैं तुमको बता देता हूं पास्ट रिटर्न्स। ठीक है, निफ्टी के है अराउंड 18% और निफ्टी जूनियर 20 के है अराउंड 21%। ओके, अब हमको और एक चीज समझनी है कि पास्ट रिटर्न्स कैन नॉट गिव सेम रिटर्न्स एज फ्यूचर रिटर्न, मतलब पास्ट और इसमें सेम नहीं हो सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि ये रिटर्न्स क्यों ज्यादा थे पहले और आगे क्यों कम होने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले एफडी के रेट 12 से 13% थे, आज एफडी के रेट 5% पे आ गए। आज से 12 से 13 साल या 15 साल पहले लोन 13 to 14%, होम लोन 14% पे मिलता था और पर्सनल लोन 18-20-22% पे मिलता था। ओके, तो जब इतने हाई रेट पे हमको पैसा मिलता था तो इन्वेस्टर को भी हायर रिटर्न्स चाहिए थे इन इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अभी एफडी के रिटर्न्स और लोन के रिटर्न्स कम हो गए। एफडी आ गई 5-5.5-6% के आसपास, और जो लोन है वो 7-7.5-8%। अगर तुम अच्छे बिजनेसमैन हो तुमको 10% के अंदर बिजनेस लोन भी मिल जाएगा। तो अगर मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा 10% में मिल रहा है तो मैं 12-15% पे भी खुश हो जाऊंगा। और इसलिए द फ्यूचर रिटर्न्स व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम निफ्टी इज अराउंड 15% और निफ्टी 20 से अराउंड 17-18%, या मैं 18 पकड़ रहा हूँ, 18 थोड़ा हायर साइड है, 17% मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश हूं। ऑन एन एवरेज अगर तुम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुमको 16.5% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं, और 16.5% में तुम खुश रहने चाहिए। ओके, अगर तुमको 16.5 मिल जाते हैं इन इक्विटी, क्योंकि डेट मार्केट में तुमको 6-7-8% से ऊपर नहीं मिलने वाले, और यहाँ पर 16 मिल रहे हैं, तो 12-13% का भी एवरेज रिटर्न इज रियली रियली गुड। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। नेक्स्ट, थर्ड चीज जो सेफ है मेरे हिसाब से वो है गोल्ड। अब अगर तुम फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुमको ऑर्नामेंट्स खरीद लेने चाहिए। ठीक है, लोग बोलते हैं ऑर्नामेंट्स में मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो आई डोंट थिंक मेकिंग चार्जेस अ वेरी बिग थिंग। ओके, एंड स्पेशली व्हेन योर मॉम एंड सिस्टर एंड वाइफ इज गोइंग टू वेयर दिस ज्वेलरी, हर चीज का कोई ना कोई तो कॉस्ट होने वाला है। यस, ये मेकिंग चार्जेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जिन लोगों को सस्ते में ऑर्नामेंट्स बनाने हैं वो मुझे आफ्टर द सेशन मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, मुझे बोल सकते हैं। मेरे डैड ज्वेलर है, लास्ट 40 ईयर्स से। आई कैन गिव यू ऑर्नामेंट्स एट वेरी वेरी लो मेकिंग चार्जेस एंड प्लीज यूज इट। अगर तुम बोलते हो सर मैंने 100 ग्राम सोना मेरी मम्मी को दे दिया ऑलरेडी, अब मेरे को आगे सोना नहीं देना है, ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके बाद 2-3 चीजें और हैं, जैसे तुम गोल्ड के बिस्किट्स रख सकते हो या गोल्ड कॉइन्स रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम गोल्ड के ईटीएफ खरीद सकते हो। ऑलराइट, और ऐसा ही एक ईटीएफ तुम्हारे डीमैट में, मतलब जो ब्रोकर के पास है वहां से तुम खरीद सकते हो, जिसको गोल्ड बीज बोलते हैं। जैसे निफ्टी बीज है और जूनियर बीज है, वैसे ही गोल्ड बीज है। अब ये गोल्ड बीज क्या करते हैं? बेसिकली गोल्ड बीज तुम्हारे बिहाफ पे गोल्ड खरीदते हैं, और ये सिर्फ 40 रुपीज से चालू होता है।
For all the girls, it is very important. For all the people who have a girl child, it is even more important. तो ये एक तरीका है जिससे तुम गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हो. इट मे नॉट गिव यू मोर रिटर्न्स. पहले तो एक चीज समझ लेना, गोल्ड खाली इन्फ्लेशन कवर करता है. ओके, बस इसकी साइकिल्स होती है, तो वो साइकिल में कैसे चलेगा वो हमको नहीं पता. कभी कभी ये अचानक ज्यादा रिटर्न दे देता है और फिर 5 सालों तक सेम रिटर्न देता है. तो ऐसे बहुत बार साइकिल्स हुई है. 4,000 से 8,000 हो गया था, फिर 2 साल रुक गया, फिर 8,000 से 10,000 हुआ, फिर 4 साल रुक गया, फिर 8 से 12 हुआ, फिर वापस 10 पे आया. वैसे ही फिर 15 पे गया, 20 पे गया, वापस 15 पे आया, फिर 25 पे गया, 30 पे गया, वापस. और 30,000 पे तो ऑलमोस्ट 7-8 साल गोल्ड ने निकाले थे. उसके बाद जब कोरोना आया तो क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई फ्रॉम ऑल द अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, क्योंकि ना तो डेट सेफ था ना तो इक्विटी सेफ था उस टाइम पर, तो लोगों ने अपने पैसे गोल्ड में पार्क करना चालू किया. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, गोल्ड एक्चुअली एक करेंसी है. मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ करेंसी. ठीक है, तो गोल्ड में जब भी तुम इन्वेस्ट करो, डोंट एक्सपेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स. हाँ, इतना कर लो कि अगर तुम्हारी एग्जिट राइट टाइम पे है तो यू कैन गेट मे बी 10, 12, 15% रिटर्न. और अगर नहीं भी मिलते ये 15%, स्टिल मेरे कैपिटल को प्रिजर्व करने का काम करता है, क्योंकि जैसे इक्विटी मार्केट गिरेगा वैसे ही गोल्ड ऊपर जाएगा. तो हमारा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक हेजिंग में चला जाता है, क्योंकि मैं लार्ज कैप और टॉप 100 कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है इफ यू आर इन्वेस्टिंग. तो दिस इज द स्टेप 2. अगर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जिन जिन लोगों की लो रिस्क प्रोफाइल है उनको स्टेप 2 क्रॉस भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि स्टेप 3 इज समथिंग, अगर मैं स्टेप 2 को बोल सकता हूं, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन थिंग्स विच आर स्टेबल. ठीक है, स्टेप 3. नाउ व्हाट इज स्टेप 3? These are risky investments. ठीक है, तो अब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आ जाता है. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, इक्विटी में अगर तुम स्मॉल कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, ऑलराइट, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है. अब अगेन, जैसे तुमको लार्ज कैप में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्मॉल कैप और मिड कैप की इंफॉर्मेशन तो और भी कम होती है मार्केट में. या तुम कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, कभी भी लाइव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. ये क्योंकि छोटी कंपनी है, इनमें मैनिपुलेशन होता है, ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं. कभी कभी तुम शेयर परचेस करते हो, शेयर गिर जाता है, तुम शेयर सेल करते हो, वापस बढ़ जाता है. तो ऐसी सब चीजें होती है इन लोग इन 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 टाइप ऑफ शेयर्स में. ऑल्दो मिड कैप फिर भी रिलेटिवली सेफ है, बट जिन जिन लोगों की मीडियम रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा पैसा मिड कैप में डाल सकते हैं. ठीक है, तो मिड कैप का डेफिनेशन पहले समझ लो. जो भी कंपनी 101 से लेकर 250 होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जो भी इंडिया में कंपनीज है उसमें 101 से लेकर 250 नंबर की कंपनी है, उनको हम लोग मिड कैप कंपनी में काउंट करते हैं. अब मिड कैप कंपनी को इजीली खरीदना है तो अगेन, जैसे हम निफ्टी 20 का ये था, वैसे मिड कैप के भी 20 है. तो जैसे ICICI MF 150, ठीक है, सॉरी ICICI 150 कर है. बेसिकली ये एक मिड कैप है. ऐसे ही बहुत सारे दूसरे ETF भी है, तो मिड कैप ETF भी है, मिड कैप 150 के नाम से. ओके, अब मिड कैप ETF क्या है? बेसिकली ये 101 नंबर की कंपनी से लेकर 250 की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में होता है? तो नो. जितनी बड़ी वो कंपनी है उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होता है. और जैसे जैसे हम आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और छोटी कंपनी को निकालते जाते हैं. अगर कोई कंपनी 250 से 260 नंबर पे पहुंच गई है, उस कंपनी को हम निकाल देंगे. ओके, सो दैट इज देयर. तो ये है. उसके बाद है स्मॉल कैप कंपनी. तो इंडिया में स्मॉल कैप का डेफिनेशन है, जो भी कंपनी 250 एंड अबव रैंक की होती है, ओके, उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं. तो ये 250 के अबाउ जो भी कंपनीज है, जो भी कंपनीज, अब कितनी कंपनीज है? NSE में 2200 कंपनीज है और BSE में मोर देन 5000 कंपनी है. तो 250 के बाद में जितनी भी कंपनीज है, ये सभी की सभी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है. बट इसमें भी अगर मैं रेकमेंड करना चाहूं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम 251 से लेकर 500 नंबर की कंपनी में इन्वेस्ट कर लो. बहुत हो गया. 500 के नीचे जाने की हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज 500 के नीचे अगर तुम जाते हो तो क्या होगा? द रिस्क विल बी वेरी वेरी हाई. और इनके मार्केट कैप और फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम होते हैं. तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब है, अगर कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 10 करोड़ की है और 75% प्रमोटर होल्डिंग है, तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सिर्फ
₹2.5 करोड़ का हुआ। अब 2.5 करोड़ तो मैं मेरे हिसाब, अगर मेरे पास 100 करोड़ भी है तो मैं उस कंपनी के शेयर को बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो स्मॉल कैप कंपनीज है इसमें तुम ज्यादा एंटर ना करो। ऑलराइट, एक्सट्रीम न्यूज हो तो तुम एंटर कर सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंटर्स और दे दूं, अगर तुम इंडिविजुअली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो तुमको देखना चाहिए। एक, उनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years शुड बी मोर देन 10%। अगर तुम एक एक कंपनी को अलग से भी जज कर रहे हो, प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन 20%। ऑलराइट, और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, शुड बी लेस देन 1। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कैम इधर ही होने वाले हैं। मतलब तुम लोगों तक कोई न्यूज, एक और चीज समझ लो, वी आर नॉट गोइंग इन द मार्केट टू स्टडी एनीथिंग। तो मार्केट हमको कहां से स्टडी भेज रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, तुमको ना कोई ब्रोकर रिपोर्ट भेज देता है, कभी कभी तुम टीवी देखते हो, वहां से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ तुम्हारे फैकल्टीज हो गए जिन्होंने तुमको न्यूज़पेपर पढ़ने को बोला, या तो तुम न्यूज़पेपर एज अ हॉबी पढ़ने लग गए हो। तो प्रॉब्लम क्या है, न्यूज़पेपर में तुमको ऐसे स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशन होती है, और ये नहीं बोला जाता कि ये स्टॉक अगर तुम 100 रुपए का खरीदते हो तो 200 का हो जाएगा। ये वो लोग जब रिपोर्ट बनाते तो इतनी हैवी रिपोर्ट बनाते कि 100 रुपए का स्टॉक है और 1000 रुपया टारगेट प्राइस है। अब जब तुम ये रिपोर्ट पढ़ते हो तो तुम्हारे ब्रेन में होता है कि बहुत बार हमने ये सुना है कि वी मिस द अपॉर्चुनिटी। तो यू डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, इसलिए तुम क्या करते हो, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हो। तो आई डोंट वांट टू से यू कि मत करो, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो स्क्रीनर्स पे जाओगे, तुमको ये सब क्राइटेरिया आ जाएंगे। सेल्स ग्रोथ निकाल लो लास्ट 5 साल की 10% से, तो एटलीस्ट ऊपर सेल ईयर ऑन ईयर अगर 10% भी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ यू इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। ठीक है, उसके बाद में आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, शुड बी मोर देन 20%, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो 20% से ज्यादा तो रिटर्न ऑन इक्विटी होनी ही चाहिए। बिकॉज 15% तो मुझे निफ्टी दे देता है, तो मैं क्यों रिस्क लूं? इनफैक्ट 25-30% के नीचे भी नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी मैं तुमको कंजर्वेटिवली 20 बोल रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इज लेस देन 30%, डजंट मेक सेंस कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिस्क बहुत ज्यादा है उस कंपनी में। ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग। ठीक है, उसके बाद में ये सब भी कभी कभी ठीक होता है, तो एक और चीज तुमको स्टडी करनी चाहिए कि क्या इनके प्रोडक्ट्स के बारे में तुमने कभी सुना है। ठीक है, तो अगर तुमने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे फ्रेंड से, या तुम्हारे सप्लायर से, B2B में होगा ये प्रोडक्ट, तो तुमने कोई बिजनेसमैन को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हुए सुना है। जैसे एक कंपनी फॉर एग्जांपल CMS करके, अब इंडिया में मतलब जो मुंबई में मेजरली जो भी ATM में पैसा डालने का काम है वो CMS करती है। और ये इतना सिस्टमेटिक काम है कि इन कंपनीज को सेल्स का कभी टेंशन नहीं होता, बिकॉज सब बैंक्स ने इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देकर रखे हुए हैं। तो इवन दो CMS इज अ स्मॉल कंपनी, उसमें डेट तो है ही नहीं, उसके ऊपर उसके प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है, क्योंकि ATM में पैसा डालना ये तो कंटिन्यूस बिजनेस होने ही वाला है जिंदगी भर। जब तक मनी है, इन रूपी और रुपीस के मतलब जो नोट वाला पैसा जब तक चलता रहेगा, तब तक CMS का प्रोडक्ट भी चलता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट है। अब दूसरी चीज जो हमने देखी है, उस कंपनी के एम्प्लॉय कभी भी कंपनी से रिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, इनका एट्रिशन रेट इज लेस देन 1%, एंड दिस इज अनइमेजिनेबल इन अ कंट्री वेयर IT सेक्टर में 70% तक एट्रिशन चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में 30% के ऊपर चल रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में अप टू 90% एट्रिशन चल रहा है। इस कंपनी के एम्प्लॉय कभी भी कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, और वो रिटायर होने के बाद ही छोड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, कि जब भी हम लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, अब तुम बोल, आप मतलब यहाँ पर जितने लोग बोले कि सर आपने तो बोल दिया कि ETF में करो, पर उसमें हमको मजा नहीं आता है, तो आई वांट टू इन्वेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ। तो क्या करो कि तुम सुबह उठो, सिंस मॉर्निंग, ओके, वॉट एवर प्रोडक्ट और सर्विसेज यू यूज, बाय दोस कंपनीज। फिर कुछ देखो मत प्राइस राइट है कि नहीं है, तुम उसके कस्टमर हो, तुम हैप्पी हो उसके प्रोडक्ट से। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, सबसे पहला काम सुबह उठ के क्या करते हैं? ओके, तो सुबह उठ के सबसे पहला काम हम लोग करते हैं मोबाइल चेक करना। ओके, ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आई एम रियली सॉरी, मैंने एक्चुअली फुल स्क्रीन किया था तो मुझे दिखाई नहीं दिया था क्वेश्चंस। आई विल अगेन, ये कोई क्वेश्चन है तो लिख कर रख लीजिए। ठीक है,
तो सिंस मॉर्निंग सबसे पहला काम हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो क्या इंडिया में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर लिस्टेड है? हमको जाकर देखना है। अगर तुम्हारा फोन वही मैन्युफैक्चरर है तो गो एंड बाय इट, चलो वो छोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं, हम टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, ओके, तो हमको क्या करना है, कोलगेट खरीद लेना है। या रादर मोबाइल फोन को इंटरनेट कौन देता है? अगर रिलायंस जियो देता है तो रिलायंस जियो खरीद लो, अगर एयरटेल देता है तो एयरटेल खरीद लो, अगर वोडाफोन देता है तो वोडाफोन खरीद लो। ठीक है, पहले नेटवर्क कंपनीज, उसके बाद में हमारे एफएमसीजी में क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं तो कोलगेट पामोलिव यूज कर लो। ओके, एचयूएल के कुछ ना कोई ना कोई प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास हो गए तो वो यूज कर लो। तुम्हारे पापा मम्मी दादा दादी जो भी फार्मा कंपनी से दवाई खरीद रहे उस उन कंपनीज को खरीद लो। ओके, तुम जो भी कपड़े खरीद रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एलन सोली, वैन हुसैन, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, पेंटालून्स करते हो तो तुमको आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड खरीद लेना चाहिए। अगर तुम एरो खरीदते हो तो तुमको अरविंद मिल खरीद लेना चाहिए। तो कपड़ों में तुम जो कपड़े खरीदते हो वो खरीद लो। वैसे ही पूरे दिन में जितने भी प्रोडक्ट्स तुम यूज करते हो, ठीक है, वो खरीद लो एंड यू विल सी। ठीक है, अब ये हो सकता है कुछ लोग बोले सर जोमेटो में इन्वेस्ट करे या ना करे। ओके, तो मैं तो पर्सनली जोमेटो के अगेंस्ट हूँ, इवन दो आई एम इन्वेस्टर, बट मैंने बहुत छोटा मतलब लेस देन 0.111% इन्वेस्ट किया है। तो मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए और ना ही तुमको किसी बड़े आदमी को कॉपी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक न्यूज आ जाती है कि एक बड़े आदमी ने इन्वेस्ट किया तो अच्छा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट मे हैपन दैट बड़े आदमी ने पैसे लेकर ये वाली चीजें की है, बट जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो तो कंपनी बड़ी बनने ही वाली है। तो जैसे डाबर हो गई, इमामी हो गई, जैसे फार्मा सेक्टर में सिप्ला हो गई, रैनबैक्सी हो गई, सन फार्मा हो गई। गाड़ियों में अगर तुम्हारे पास मारुति सुजुकी तो मारुति सुजुकी के शेयर खरीद लो। अगर तुम्हारे पास हीरो के, हाँ, अगर तुम्हारे पास हीरो के शेयर है तो हीरो खरीद लो। तो ऐसे तुम खरीदते जाओ। अब क्या खरीदना, एक बार तुमने ये खरीद लिया, सपोज मैं बोल रहा हूँ चलो जोमेटो भी तुमने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया है, ठीक है, अब क्या करना है, जोमेटो अगर बढ़ेगा, इफ शेयर प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, तो ही तुमको दूसरा इन्वेस्टमेंट उस शेयर में करना है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो सपोज 50 रुपीज में था, तुमने बाय किया, अब तुम्हारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 55 रुपीज में होगा, उसके बाद में नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 60 पे होगा, उसके बाद में नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 65 पे होगा एंड सो ऑन। सेम थिंग विद रिलायंस जियो। अगर सपोज तुमने 2400 में रिलायंस खरीदा तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा होना चाहिए 2450 में मैं खरीदूंगा, उसके बाद होना चाहिए कि 2500 में खरीदूंगा, उसके बाद होना चाहिए 2550 में खरीदूंगा। जो भी बढ़ते हुए शेयर है उनको मैं खरीदूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल अभी 800 पे पहुंच गया है, तुमने 800 पे खरीदा, नेक्स्ट होना चाहिए तुम्हारा 825 पे खरीदूंगा, 850 पे खरीदूंगा। अगर कोई भी शेयर गिर जाता है उसको छोड़ दो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कुछ लोग सिगरेट तो पीते ही होंगे, तो जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उनको आईटीसी खरीद लेना चाहिए। जो भी लोग पार्टी करते हैं, मतलब आई डोंट रिकमेंड इट, बट अगर तुम यूनाइटेड ब्रीव मतलब किंगफिशर या कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो यूनाइटेड ब्रीवरीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारी, रेडिको केतान है, ठीक है, गोल्फ्रे है, ये सब कंपनीज में भी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेशली वी आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब कुछ प्रोडक्ट तुम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हो, इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल तुम कहीं किसी शॉप पे गए, ऑलराइट, या ठीक है, तुम किसी शॉप पे गए एंड तुमने कोको कोला खरीदा, ठीक है, अब कोको कोला में तो हम डायरेक्टली इंडिया में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल में जाके करना पड़ेगा। ऑलराइट, बट तुम अगर कोको कोला कैन में खरीद रहे हो तो ये कैन बनाते हैं हिंडाल्को, तो तुमको हिंडाल्को में भी, तो ये क्या है ना, तुमको आसपास में देखना चालू करना है, तुम्हारे घर पे स्विचेस किसके लगे हुए हैं, उन कंपनीज में तुम जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द 3 स्टेप थियरी। ठीक है, दिस इज द 3 स्टेप थियरी फॉर यू पीपल। पहले जितने भी लोग यहां पर है, प्लीज सी टू इट कि तुम्हारे पास इनफ इंश्योरेंस हो। दूसरा कि जो डेट मार्केट है, दूसरा स्टेप है कि हमको स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, जिसमें डेट मार्केट है, इक्विटी लार्ज कैप है और टॉप 100 है, और उसके बाद है गोल्ड। और अगर उसके बाद भी तुमको और थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मिड कैप के रिटर्न्स नॉर्मली स्मॉल कैप से या सॉरी लार्ज कैप से ज्यादा होते हैं। ओके, तो अगर उधर 18% तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर 20% तुम इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इक्विटी का। इसके अलावा क्या कर सकते हो, तुम थोड़ा पैसा डेरिवेटिव्स में कर सकते हो इन्वेस्ट। अब डेरिवेटिव्स बहुत डेंजरस होते हैं, तो बहुत लोगों ने तो सुन लिया होगा, फ्यूचर्स, कॉल एंड पुट।
ठीक है, तो पहले तो तुमको इसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है, और ये स्टडी करना तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर फाइनेंस जॉब, उनको डेरिवेटिव का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो तुमको डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। ऑलराइट, इनमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है बट रिटर्न्स उससे भी ज्यादा हाई है। ऑन एन एवरेज मेरा महीने का रिटर्न्स है 4 to 5%, विच इज वेरी वेरी हाई फॉर मी, बट मैंने बहुत छोटा पैसा इसमें लगा के रखा है बिकॉज इसमें लॉस भी बड़े हो सकते हैं। तो अगर तुम लॉस को बेयर करने की ताकत रखते हो तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब इसके अलावा तुम किसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो? रिस्की इन्वेस्टमेंट में मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट में रिस्की इन्वेस्टमेंट में आता है मेरे लिए तो। ओके, इसके अलावा अगर तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें बहुत लोगों के पैसे बढ़े और बहुत लोगों के पैसे बर्बाद हुए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक नया इंटरनेट 3.0 चालू हुआ है जिसमें एनएफटीज भी बिकने वाली है, ऐसा लोग बोलते हैं। 1 लाख की एनएफटी 5 लाख में बिक गई, ऐसी सब न्यूज तुम तक पहुंचती है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं खरीदूंगा उसके बाद ये नहीं होने वाला। आई डोंट नो, आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, बट मुझे लगता है कि ये जो नीचे की 3 चीजें मैंने लिखी है ये मेरे लिए नहीं है। ओके, आई एम हैप्पी विद 4-5% रिटर्न्स per month. I don't want times में returns in 1 month. I am okay with lower returns also. Okay, अब इसमें अगर 2% भी मिल जाए तो you should be happy. ठीक है, मैं 4% बोल रहा हूं, उसमें रिस्क ज्यादा लेनी पड़ेगी। तुम इनफैक्ट 10% भी बना सकते हो, उसमें रिस्क और भी ज्यादा होगी। ओके, बट देयर इज अ प्रोसेस। पहले तुमको स्टेप 2 कंप्लीट करना है, फिर ही स्टेप 3 पे जाना है। तुम लर्निंग के लिए तो ये ले सकते हो, बट डोंट बाय दिस, व्हाट यू से, डोंट गो फॉर डायरेक्ट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ऑलराइट, तो जिन लोग, जो भी लोग यहाँ पर अपने आप को अमीर मानते हैं या उनके पेरेंट्स अमीर है या हायर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनको डेरिवेटिव्स की लर्निंग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज डेरिवेटिव से तुमको ये पता चलेगा कि वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे किया जा सकता है। ओके, सो दैट इज देयर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रियल एस्टेट। अब कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट ने बहुत रिटर्न्स दिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, क्योंकि मुझे इतना बड़ा कैपिटल नहीं डालना है, प्लस मुझे रियल एस्टेट लेना है तो लोन लेना कंपलसरी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो लोन नहीं लेना है मुझे, लाइफ में सोने के टाइम मुझे आराम चाहिए, तो इसलिए हम लोग लोन, मैं तो पर्सनली लोन के साथ नहीं हूं और मैं लोन नहीं लेना चाहता हूं। Okay, I hope I am very very clear about whatever I am speaking. Okay, so these are the 3-step theory which you can use in your daily life, और अपने वेल्थ को ग्रो करने में तुमको ये मदद हो सकती है। Alright, so I'll just point out the important things. हाँ, एक और चीज है, जितना भी पैसा तुम स्टेप 3 में डाल रहे हो, ये पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। ओके, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है। सुजलॉन एक कंपनी थी जो 400 रुपए का शेयर था, आज वो शायद 9 या 10 रुपए में है, और कोरोना के टाइम पर वो शेयर 2 रुपए का हो गया था। हिंडाल्को, सॉरी नॉट हिंडाल्को 600 से 300 पे आ गया है। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल करके कंपनी थी जिसका ऑल टाइम हाई 750 का है, और अभी वो 2 या 3 रुपए में आ गई है। तो मिड कैप में ना डेंजर बहुत हाई होता है, बिकॉज वी आर बेटिंग ऑन अजम्पशंस। ओके, इसमें अजम्पशन ज्यादा होता है, रियलिटी कम होती। जो भी अजम्पशन राइट होगा उसमें तुमको एक्सपोनेंशियली रिटर्न्स भी मिलेंगे। जैसे हेवल्क में अगर तुम्हारे डैड ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होते अगर उनके आईपीओ के टाइम पर इन्वेस्ट किया होता। सेम विद विप्रो, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा मोटर्स, सब बड़ी कंपनी जो आज बनी है ये कल की छोटी कंपनीज ही थी। ठीक है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनको तो तुम अगर 5 साल से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, उन लोगों को ये शेयर तो 5 साल में ही बढ़े। नेस्ले 2016 में, आई नो, जब उसका कैंसर वाला वो आया था न्यूज, तब वो शेयर 5,000 रुपए का था और आज वो शेयर 20,000 रुपए का, तो 4 टाइम्स हो गया वो। ओके, तो ऐसे ही मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज हैं जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। अब ग्रो होने का रीजन तुमको समझना है और उसकी स्टेबिलिटी भी देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तुम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मार्जिन बहुत ज्यादा कम है एंड इट मे अफेक्ट यू। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों तुमको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। पहले तो आई वुड रिकमेंड कि जितनी ज्यादा स्टडी कर सकते हो स्टडी करो, बिकॉज आई पर्सनली फील कि सरस्वती का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंफॉर्मेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पहले अपना जो भी, अभी तुमने ऑलरेडी एमबीए कर रहे हो या जो भी कोर्स कर रहे हो, प्लीज कंप्लीट दैट कोर्स, पूरा 200% देके वो कोर्स करो। अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। स्किल्स डेवलप कर ली तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जैसे इफ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन,
तुम्हारी मार्केटिंग सैलरीज बढ़ सकती है। इफ यू आर वेरी गुड इन कन्विंसिंग पीपल, तुम्हारी मार्केटिंग सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। अगर तुम एक्सेल में अच्छे हो और फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो तुम्हारी फाइनेंस की सैलरी बढ़ सकती है। अगर तुम्हारा एक्सेल अच्छा है तो तुमको ऑपरेशन में एक अच्छा जॉब मिल सकता है। तो अपने स्किल्स को बिल्डअप करो, बट कितनी भी तुम स्किल्स बिल्डअप कर लो, देयर इज वन थिंग विच इज लिमिटेड, दैट इज टाइम। ठीक है, तो अगर तुम 20,000 कमाते हो 8 घंटे काम करके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डू फॉर 30,000, 40,000, 60,000, 80,000? तो 20 का 30 करना है तो हमको 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, 20 का 40 करना है तो हमको 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, और 20 का 60 करना है तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी नीड टू स्लीप। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं सोऊं तब भी मेरे लिए पैसा बने, और इसलिए हमको पैसिव इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्टिव पे बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे 30, 35, 40% मिले तो यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस, बट उस बिजनेस से जो वेल्थ क्रिएट होता है उसको तुम एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाओगे अगर वो बिजनेस तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर जितने भी लोगों ने यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस यू शुड हैव इज वेयर यू आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। ठीक है, तो मेरा एक फर्स्ट बिजनेस, या मैं जॉब पर हूँ बिरला में, इसके अलावा आई हैव अ स्टार्टअप जिसमें मैं डायरेक्टली काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सैलरीज देने का काम है, मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम है, और अगर वो बड़ा बना कभी तो वो बड़ा बन जाएगा, और वो नहीं बना तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऑलरेडी मेरे 2-3 बिजनेसेस फेल हुए एंड आई एम ओके विथ फेलियर्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन तुमको बनना है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि पहले मुझे मेरा करियर सेट करना है, मतलब एज अ पर्सन कि अगर मुझे जॉब ना करना है इन फ्यूचर तो मुझे क्या करना है। तो मैंने ये अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है कि मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए मुझे जमा करने हैं। इसके अलावा पापा की प्रॉपर्टी वगैरह मिलने वाली है। इसके अलावा मेरी वाइफ क्योंकि सिंगल चाइल्ड है, उसके साइड से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको मिलने वाली है। तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द प्रॉपर्टीज, आई विल टेक केयर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ओके, और उसके बाद में मेरा जो काम है वो चालू होगा, एंड दैट इज ग्रोइंग दिस वेल्थ टू सच एन एक्सटेंट। ओके, राइट नाउ माई एज इज अराउंड 36। मेरे लाइफ के 2 इंपॉर्टेंट गोल है। बिफोर 50 आई शुड ट्रेवल एटलीस्ट 100 कंट्रीज, एंड बिफोर 60 आई शुड बी हैविंग एटलीस्ट 100 करोड़ इन माय अकाउंट। ओके, वेदर इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब वो स्टार्टअप से भी हो सकता है, वो नॉन स्टार्टअप से भी, इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, डेरिवेटिव से हो सकता है। आई एम गिविंग माई सेल्फ ऑल द अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी मैं दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ, और उसकी वजह से 100 करोड़ का एक बेसिक टारगेट मैंने रखा है। आई थिंक 100 करोड़ भी बहुत कम है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड मनी you can actually grow your money at a very high scale. Okay, so that is the importance कि क्यों तुमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि तुम सिस्टम बना सको। और अगर तुम्हारे डैड का ऑलरेडी एक बिजनेस है जहां पर उनके कुछ ईमानदार एम्प्लॉइज है, उन ईमानदार एम्प्लॉइज पे वो दुकान छोड़नी चाहिए, वो फैक्ट्री छोड़नी चाहिए, उनको भली सैलरी ज्यादा देना पड़े, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा टाइम एक ही बार, मतलब हर सेकंड जो तुम वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए, और पैसिव इनकम ग्रो होगी तो ही तुम लाइफ में करोड़पति बन सकते हो। एक्टिव इनकम से बहुत कम लोग करोड़पति बनते हैं, पैसिव इनकम से ही ज्यादा से ज्यादा लोग करोड़पति बनते हैं। और जो भी बड़े बिजनेसमैन अपने ऊपर नहीं, जैसे मेरे नीचे अगर 100 लोग काम करते हैं तो मेरा वो पैसिव इनकम ही गिना जाएगा। ठीक है, बट अगर वो भी नहीं है हमारे पास फैसिलिटी, तो इन्वेस्टमेंट इज द ओनली फैसिलिटी यू हैव। Okay, so after you protect your fund via taking insurance, the next step you should do is you should start investing. Okay, अब वेज क्या क्या है ये ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर दिया है। तो इक्विटी में तुमको डिविडेंड और एप्रिसिएशन मिलता है, डेट में तुमको इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड में तुमको डिविडेंड भी मिल सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, इंटरेस्ट भी मिल सकता है, गोल्ड में तुमको सिर्फ एप्रिसिएशन मिलता है, रियल एस्टेट में तुमको रेंट प्लस एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है अगर तुम कोई यूट्यूब चैनल खोल दो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दो, तो उसमें तुमको रॉयल्टी इनकम मिलती है। उसके बाद है पब्लिशिंग बुक्स, अगर तुम कोई बुक लिख देते हो तो उसमें तुमको मिल सकता है सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अगर तुम्हारे नाम पर कुछ होगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट सेलिंग, अगर तुम्हारे में दम है कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट बनाना, जैसे बिग बॉस इज अ कॉन्सेप्ट जो अलग अलग कंट्री में गया है, और हर एक, जैसे बिग बॉस इंडिया इज पेइंग मनी टू बिग बॉस अमेरिका बिकॉज उन्होंने उस चीज को कॉपी किया है। सेम थिंग विद रोडीज, रोडीज आज ऑलमोस्ट 15 कंट्री में चला गया है, और जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर दैट दे गेट रॉयल्टी फ्रॉम देम। उसके बाद तुम किसी की फ्रेंचाइजी खरीद लो या फ्रेंचाइजर बन जाओ, दोनों में से एक। ठीक है, जैसे क्योंकि फ्रेंचाइजी खरीदने का फायदा क्या है कि तुमको ब्रांड नहीं बनानी, ब्रांड ऑलरेडी बनी हुई है। तो इंडिया में कंपनी है पेज इंडस्ट्री जो जॉकी को 6% देती है। ठीक है, बट इसका फायदा क्या है पेज इंडस्ट्री को, उनको खुद की ब्रांड बनाने में जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगता था, मार्केटिंग एक्सपेंस लगता था, बाकी की जो एक्सपेंसेस लगते थे वो नहीं लगेंगे, क्योंकि जॉकी इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश ब्रांड। तो या तो फ्रेंचाइजी ले लो या तो फ्रेंचाइजर बन जाओ, जहां पे तुम ब्रांड बनाओगे। और अगर तुमने एक ब्रांड बना ली, तो जैसे चाय सुट्टा बार जो इंदौर में बहुत फेमस है,
ऑलराइट, तो वो अपनी फ्रेंचाइजी देने का काम है एक्चुअली, उसका मेन बिजनेस से कोई खास अर्निंग नहीं है। उसके बाद तुम एमएलएम ज्वाइन कर सकते हो, बट अगेन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अभी। बट अगर तुमको स्किल डेवलपमेंट चाहिए स्पेशली इन मार्केटिंग, तो एमएलएम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत डीप में सिखाया जाता है कि कैसे एक पर्सन को हवा बेचनी। उसके बाद तुम इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो, ब्रोकिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, एएमसी ज्वाइन कर सकते हो। तुम कोई ऐसा प्रोग्राम चालू कर सकते हो जैसे स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों ने यूट्यूब में ज्वाइन बटन देके रखा है, तो अगर तुम उस ज्वाइन बटन को यूज करते हो, बेसिकली यू बिकम सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ दैट, यू आर बाइंग मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान। ओके, उसके बाद में यू कैन बी इन्वेस्टिंग इन स्मॉल बिजनेसेस, जैसे मैंने एक फोटोग्राफी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है जेएस फोटोग्राफी, जितेंद्र सौरभ फोटोग्राफी। तो सौरभ इज द फोटोग्राफर, आई हैव जस्ट इन्वेस्टेड माय मनी। ठीक है, उसके बाद है यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ मार्केटिंग कंपनी या फार्मा कंपनी। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग सब करके रेडी कर देंगे, तुमको सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है। तो ये फार्मा में भी एप्लीकेबल है, ये एफएमसीजी में भी एप्लीकेबल है। और जितने भी स्टार्टअप्स तुमने स्टार्क टैंक में देखे, बहुत सारे स्टार्टअप डायरेक्टली ये माल दूसरों से बनवाते हैं। जैसे इना कैन करके जो वो था, वो पूरा प्रोडक्शन उसका आउटसोर्स है, कैन आउटसोर्स है, एवरीथिंग इज आउटसोर्स, दे आर जस्ट मेकिंग ब्रांडिंग। तो यू कैन स्टार्ट टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज देयर वे टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया है, ये भी तुमको बोल दिया है। ऑल राइट, सो नाउ विल मूव टू क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, if you have any questions you can type it in the chat column. ओके, व्हाट इज गोल्ड बीज? तो गोल्ड बीज में क्या होता है, बेसिकली इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में पहले मैं बता देता हूँ क्या है। ओके, सो देयर आर मेनी म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है, उस म्यूचुअल फंड जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है सब एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड तो बाहर से तो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है, और उसके बाद में उसके जो छोटे यूनिट्स बन जाते हैं, वो यूनिट्स को वो ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू, डीमैट के थ्रू तुम खरीद सकते हो। ओके, तो वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, एक एक यूनिट भी तुम ब्रोकिंग अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हो। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। अब इसमें गोल्ड के ईटीएफ होते हैं या गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि तुमको गोल्ड अपने घर पर रखने की जरूरत नहीं, फंड मैनेजर अपने लॉकर में रखेगा। तो जो सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम है वो फंड मैनेजर का प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दैट इज देयर। ओके, सो अब निफ्टी 20 क्या है, इट इज एन गोल्ड म्यूचुअल फंड का ईटीएफ। तो बेसिकली तुमको गोल्ड अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ईटीएफ खरीद सकते हो। ये ईटीएफ तुम्हारे डीमैट अकाउंट में रहेगा, जब भी तुमको बेचना है तुमको इक्विवेलेंट पैसा मिल जाएगा। So that is gold ETF. Okay. How to know when to sell a particular share? Now, just to tell you, I am an investor with 268 companies. ओके, और मैंने अपने आप को ये बता दिया है कि इफ आई एम नॉट गुड विद इन्वेस्टमेंट, तो मैं अपने आप को कभी बोलता ही नहीं हूँ कि आई एम वेरी गुड विद इन्वेस्टमेंट एंड आई नो वेयर इज द मार्केट गोइंग टू ग्रो। ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मैंने क्या किया, रैंडमली, मैंने जैसे तुमको बताया, मैंने रैंडमली टॉप 100 कंपनीज में पहले इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 250 तक मैं चला गया, और कुछ स्मॉल कैप कंपनीज जो जीरो डेप्थ थी उसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 270 कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है, और इन कंपनीज को मैं तभी खरीदता हूं अगर ये मेरे पहले के कॉस्ट प्राइस से ऊपर रहती है। ठीक है, तो मेरे लाइफ के कुछ रूल्स मैंने बनाए, जैसे मैं जितने का भी फालतू खर्चे करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन खरीदा 1,20,000 रुपीज का, तो मेरा एक रूल है कि मेरे पास 2,40,000 होने चाहिए एक आईफोन खरीदने के लिए। जब तक वो 2,40,000 नहीं, तब तक मैं आईफोन नहीं खरीदता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 1,20,000 आईफोन में दे देता हूँ और 1,20,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेम चीज मैं डेली चीजों पर भी इंप्लीमेंट करता हूँ। जो भी मेरे एक्सपेंसेस, जैसे मैं कल होटल में गया, मैंने 800 रुपए ये किए, तो वो 800 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस वेबिनार के लिए तुम लोगों ने कुछ पैसे दिए हुए, वो पैसे मैं डायरेक्टली कल कुछ लोगों के सामने, मतलब मंडे को, मैं वो पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये फ्री इनकम है। तो आई डोंट सी कि कब शेयर बाय करना चाहिए, कब शेयर सेल करना चाहिए। हमको तो 20 साल बाद बेचना है, आज तो बेचना ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, अगेन, तुमको शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए तो इट इज रिकमेंडेड कि तुम सेफ वाले एसेट्स में रहो, रिस्की वाले एसेट से दूर रहो। अब इसका कोई भी खास न्यूज नहीं है जिससे तुमको एक्चुअली पता चले, बट एक फॉर्मूला जो मैं तुमको देना चाहता हूं, अगर तुम
स्पेसिफिकली मांग ही रहे हो कि मुझे एक चीज तो एटलीस्ट बता दो कि हाउ डू आई सेल द शेयर। तो मेरे लाइफ में जब भी मैं, एक सेकेंड ना, ठीक है। ठीक है, तो एकदम सिंपल, अगर मैं सबसे सिंपल चीज बताऊं कि व्हेन शुड यू सेल अ शेयर, ऑलराइट, तो पहले इसको डेली चार्ट पे लगा दो, ऑलराइट। और तुम कोई भी एक ईएमए ले सकते हो। अगर तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो तुम ईएमए 50 लो, मैं बाकी के सब डिलीट कर देता हूं सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी। ठीक है, अब मैंने दो चीजें रखी है, एक है ईएमए 50 और एक है ईएमए 200। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो ये 200 ईएमए को अगर ये शेयर ऊपर से नीचे तोड़ता है तो आई विल सेल द शेयर। अगर मैं एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर था तो मुझे ऑलरेडी ये शेयर सेल कर देना चाहिए था इस दिन के बाद, मतलब इस दिन, ऑलराइट। और सेम एप्लीकेबल है बाइंग के लिए। सिंपल रखो, 50 के ऊपर बाई करना है, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम देखोगे, सॉरी ये 5 मिनट है, मैं इसको 1 डे पे कर डाल देता हूँ। 1 डे के हिसाब से तुमको रिलायंस का सेल सिग्नल 50 ईएमए में पहले ही मिल गया था, उसके अगले दिन शेयर गिरा है और ये 2560 से गिर कर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2300 पे आ गया था। ऑलराइट, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन बाइंग। तो जब भी इस पॉइंट के ऊपर तोड़ा है, नेक्स्ट डे में बाई कर लूंगा, इसके बाद ये रैली मिल जाएगी, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अगर ये इंडिकेटर भी तुमको बहुत ज्यादा लग रहा है, और 200 ईएमए क्या है, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत टाइम, अगर तुम थोड़ा पीछे जाओगे, ठीक है, तो इसने ये इंडिकेशन दिया था यहां पर कहीं, ठीक है, 1370 रुपए में रिलायंस ने बाई सिग्नल दिया था, जिसके बाद में ये शेयर ऑलमोस्ट 2800 टच करके आया है। सेम थिंग तुम कोई भी शेयर लगा दो, ऐसा नहीं, कोई भी बड़ी कंपनी के शेयर लगा दो, ये मैंने टॉप 50 कंपनीज इधर, मेरे इधर हमेशा अच्छे शेयर ही होते हैं। हाँ, वॉच लिस्ट में गलत शेयर कभी मत रखा करो, क्योंकि वॉच लिस्ट में अगर गलत शेयर है ना तो तुम कभी ना कभी उसको खरीद ही लोगे। ठीक है, वैसे LIC मेरे लिए अभी नेगेटिव है, सो दिस इज वन मोर वे। अब ये हमेशा से ही नीचे चल रहा है, तो जब तक ये 668 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं इसमें बाई नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे भारतीय का ये देखो, यहाँ पर बाई सिग्नल आया था इस पॉइंट के बाद। ठीक है, यहाँ पर तुम बाई करते अराउंड 700 पे और ये 800 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, सो दैट इज वन वे आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐसे तुम, बेसिक चीज है ये, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगानी है। 50 ईएमए लगा दो और उस पर बाई सेल करते रहो, या 200 ईएमए लगा दो उस पर बाई सेल करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 200 ईएमए इस पॉइंट के आसपास तोड़ा था, ऑलराइट। अगर तुम एक दो दिन आगे, इसमें क्या होगा, एक दो बार तुमको बाई सेल करना पड़ेगा, बट एक बाई परफेक्ट मिला तो उसके बाद बहुत बड़ी रैली मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये शेयर 515 530 के आसपास था और ये शेयर ने ऑलमोस्ट 800 रुपए तक, 775 तक गया, ऑलराइट। उसके बाद इधर सेल सिग्नल आया तो यहाँ पर बेच दो, फिर यहाँ पर खरीद लो। ठीक है, तो ये तुमको खरीदना बेचना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, बट 200 ईएमए का तुम देखोगे तो काफी कम सिग्नल आते हैं, विच इज एक्चुअली बेटर फॉर यू एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तुम जितना ही प्रॉफिट करते हो उसमें तुमको टैक्स भरना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 15% ऑफ योर प्रॉफिट। ठीक है, सो दैट इज देयर। एंड देयर इज वन मोर इंडिकेटर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं पहले बाकी के इंडिकेटर डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम नहीं चाहिए, RSI भी नहीं चाहिए, सुपर ट्रेंड भी नहीं चाहिए, VWAP भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको तुम 1 डे पे लगा दो। ठीक है, दिस इज MACD इंडिकेटर। जब भी ये 0 को क्रॉस करेगा तब तुम बाई कर सकते हो शेयर को, या तो ये जो एवरेज रेड लाइन है इसको नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो तुम बाई कर सकते हो। तो ये शेयर की बाइंग आई थी, एयरटेल की बाइंग जो लेटेस्ट बाइंग आई थी वो आई थी 672 पे, उसके बाद ये शेयर 800 पे पहुंच गया है। यहाँ पर सेलिंग होकर वापस यहाँ पर बाई सिग्नल आया था इस पॉइंट पे 740 पे, जो वापस ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पे सेलिंग आई थी 784 पे, उसके बाद शेयर गिरकर लो बनाया है 753 का और अभी वापस ये बाई सिग्नल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डेली चार्ट पे ये देखना। अब ये एक्चुअली फाइनेंस कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। तो जैसे यहाँ पर देखो 24-23 पे सेल सिग्नल आया था, ऑलराइट, और उसके बाद कभी सेल बाई सिग्नल आया नहीं और आज ये शेयर 2200 पे पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट 10% तुमने कमा लेते अगर तुम ये इसको खाली ब्लाइंडली भी फॉलो करते। ठीक है, MACD ने मुझे बहुत रिटर्न्स दिए ऑनेस्टली, तो MACD के बेसिस पे भी तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर वो लेन देन में एक टाइम आता है जब तुम इससे पक जाते हो कि क्या लेन देन ही कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, और थोड़ा पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। तो 2189 पे बाई सिग्नल आया था, उसके बाद में एक और बार इधर सेल के आसपास आके ये शेयर ऊपर गया और ऑलमोस्ट 25 टच हुआ है। 2100 से 2500 का मतलब है 15% रिटर्न, ठीक है। सो दिस इज रियली रियली गुड रिटर्न फॉर एचडीएफसी, और एचडीएफसी बहुत स्टेबल कंपनी है, तो इसमें तुम वो वाली रिस्क ले सकते हो। आई विल गो टू सम बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे देखने को मिली है। तो ये है कुछ इंडिकेटर्स, जैसे यहाँ पर तुमको सेल कर देना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास एचडीएफसी था तो 870 या 865 के आसपास सेल कर देना चाहिए था। यहाँ पर बाई सिग्नल आके वापस ये यहाँ पर सेल सिग्नल आया, तो ये तुमको करना पड़ेगा बार बार, ऑलराइट। और ये जब तुम बार बार करोगे ना, तुम्हारे जो नेट रिटर्न है वो एक्चुअली बहुत हाई होंगे। तो आर यू रेडी टू पे द एक्स्ट्रा मनी? ओके, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, so that is there. What about SIP? Yeah, SIP can be a great way to invest, but I would recommend not to invest entire. Actually SIP एक better तरीका है, but तुम SIP कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 साल या 10 साल का विजन रखो। ओके, तो अगर तुम 44,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तुम्हारे पास 12% के हिसाब से भी 1 करोड़ हो जाएंगे, और 15% के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड स्टार्ट। एट एज 32 अगर तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए रेडी है, तो यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट सेव 44,000। ओके, तो मैं रेकमेंड करता हूँ जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो लोग अपनी जॉब लगने के बाद एक कसम खा लो, दोनों पार्टी, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ, क्योंकि दोनों वर्किंग होने वाले, दोनों इक्वल है घर में, तो दोनों 22,000 पर पर्सन सेव करेंगे, जिससे उन लोग को 32 साल की उम्र के बाद उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। सो 1 से 1.5 करोड़ रुपया रेडी है। इसके अलावा आई थिंक ऑल द पीपल हियर आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, तो तब तक अगर तुम्हारे प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हो जाता है, तो पापा की तरफ से तुमको 1.5 करोड़ 50 लाख जो भी मिले, वो भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, एंड अ बिगर पोर्टफोलियो विल ग्रो एट अ फास्टर पेस। ठीक है, तो ये याद रखना, उसका कुछ रीजन होती है, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, यू गेट अपॉर्चुनिटी, कभी फंस जाते हो तो निकलने का अपॉर्चुनिटी होता है। इसलिए 2 लाख वाले इन्वेस्टर और 2 करोड़ वाले इन्वेस्टर को सेम नहीं गिन सकते हम लोग, ठीक है। तो तुम SIP भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर आदर्श का क्वेश्चन है, टेल अस मोर अबाउट निफ्टी बीज एंड हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन दैट। तो निफ्टी बीज के बारे में मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। तो जैसे तुम शेयर खरीदते हो, वैसे ये निफ्टी बीज है। तो दीज आर द सम ऑफ द बीज विच आई हैव विथ मी, ऑलराइट। तो ये निफ्टी बीज है, बेसिकली जैसे निफ्टी बढ़ेगा ये वैसे ही बढ़ता है। ओके, सो दिस इज निफ्टी बीज जो अभी 186 के आसपास है। जूनियर बीज विच इज अराउंड एट 447। इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर बीज ने ज्यादा रिटर्न दिया, इट मे हैपन दैट जूनियर बीज पहले लॉन्च हो गया था, निफ्टी बीज बाद में लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मिड कैप 150, ये जो मैंने तुमको बोला था मिड 150 बीज, तो ये बेसिकली 119 रुपए का ही है। तो इसमें तुम सबसे ज्यादा रिस्क लेते हो, तुम्हारी एज पे तुम एक्चुअली तुमको थोड़ी रिस्क लेनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। आफ्टर एज 32 तुम थोड़ी रिस्क कम कर सकते हो, तो यू शुड बी एन इन्वेस्टर विद मिड 150 बीज। उसके बाद है गोल्ड बीज, उसके बाद है सिल्वर बीज। तो अगर तुमको सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना है, तुमको जाकर किसी ज्वेलर के पास सिल्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर सेल सिग्नल था, यहाँ पर बाई सिग्नल था, तो वैसे ही तुम इंडिकेटर यूज करके भी कमोडिटीज खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीज। सो आदर्श का क्वेश्चन आई होप इट इज आंसर्ड। उसके बाद व्हाट इज MLM? सो MLM बेसिकली इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, वेयर तुमको चेन सिस्टम बनाना सिखाते हैं, तो एमवे, ओरिफ्लेम, उसके बाद फॉरएवर लिविंग। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया में ये स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं बचे। तो ऑल्दो मैंने कुछ MLM कंपनीज में काम किया था, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो गई, शायद ना सुनना भी उन्होंने मुझे सिखाया, एटीट्यूड सिखा दिया। बट द प्रॉब्लम इज आई वाज नॉट सक्सेसफुल ऑनेस्टली, मेरे घर के पैसे गए हैं, आए नहीं कभी MLM में। तो अगर तुम सीखने के लिए जा रहे हो तो कोई भी एक कंपनी ज्वाइन कर लो, तुमको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग, लीड जनरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग, कैसे क्लोज करना है, कैसे एक लीडर बन जाना इमीडिएटली, क्योंकि MLM इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे तुम पहले ही दिन लीडर बन जाते हो, ठीक है। बिकॉज तुमको दूसरों को मोटिवेट करना है टू बाय द सेम प्रोडक्ट जो तुमने बाय किया है। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम तो एक दिन में बाय कर लेते हैं, पर हमारे लोग जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, ये लोग एक दिन में बाय नहीं करते, तो उसमें भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो MLM में अगर तुम्हारे पास टाइम है और थोड़ा तुम पॉजिटिव हो लाइफ में, तो ही जाना, बिकॉज MLM में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और तुमको कस्टमर बहुत अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज देयर। इज इट अ सेफ इन्वेस्टमेंट?
प्रखर का SIP सेफ नो, अगर तुम लार्ज कैप में ही कर रहे हो तो अनसेफ तो नहीं बोल सकता मैं, बस लॉन्ग टर्म के लिए रहना, एग्जिट राइट टाइम पे होना चाहिए। तुमको एक कैलकुलेशन रखना है, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ XIRR, अगर तुम एक्सेल में जाके थोड़ा सा स्टडी करोगे XIR फॉर्मूला क्या होता है, तो कब कब तुमने इन्वेस्ट किया तुमको लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में तुमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो माइनस लिखना है, और आज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लिखनी है। उसके बाद XIR का फॉर्मूला अगर तुम डालते हो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, तुमको एक नेट रिटर्न मिल जाएगा। तो जब भी तुमको 17-18% रिटर्न मिले तब तुम पैसा निकालना चालू करो, जब वापस मार्केट नीचे आए तब वापस चालू कर सकते हो। अब ये सब एक्सपेरिमेंट तुमको कुछ चीजों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से होगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभी तुमको ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है, कभी कभी तुमको कम रिटर्न्स भी दे सकता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रीति ने पूछा है वेयर टू पुट मनी आफ्टर रिटायरमेंट, व्हाट्स द सेफेस्ट ऑप्शन। तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और डेट इन्वेस्टमेंट उसमें मैं रेकमेंड करूंगा। ऑलराइट, तो देयर आर मेनी कंपनीज इन लाइफ इंश्योरेंस जो एन्युटी प्लान बेचते हैं, जिसमें तुमको सपोज आई टर्न 60, मेरे पास 2 करोड़ रुपए रेडी है, तो मैं अगर 2 करोड़ रुपए बिरला को दे देता हूँ तो बिरला मुझे गारंटेड 12 लाख रुपए साल के देगी टिल द टाइम आई एम अलाइव। मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को देगी, और जिस दिन मैं और मेरी वाइफ दोनों एक्सपायर हो जाएंगे उस दिन मेरे बच्चे को ये 2 करोड़ रुपए रिटर्न मिल जाएंगे। तो रिटायरमेंट के लिए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है टू गो फॉर एन्युटी प्लान्स। हाँ, वो टैक्सेबल होते हैं, तो अगर तुमको टैक्सेबिलिटी बचानी है तो उसके लिए तुमको एक दूसरा रास्ता है, तो वो तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर से जब तुम पूछोगे, देयर आर सम अदर प्लान जो 100 साल तक रिटर्न तो देते हैं बट वो टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं। जिसने भी तुमको यहाँ पर बुलाया है तुम उनसे पूछ सकते हो, दे विल कनेक्ट यू विथ मी इफ यू वांट एडवाइस फ्रॉम मी। ओके, सो दैट इज देयर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो FD में रहना चाहिए, और थोड़ा पोर्शन, अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ है तो 20-30 लाख या 40 लाख रुपए, मतलब 20% पोर्टफोलियो तुम इक्विटी में भी रख सकते हो, बट मेजर पोर्शन तुमको डेट में ही रखना चाहिए। ओके, सो दैट इज देयर। उसके बाद है इफ वी आर परचेजिंग कार और फॉर रेंट पर्पस, इज इट सेफ इन्वेस्टमेंट। या अगर रेंट पे मतलब तुम एज अ कमर्शियली चला रहे हो तो वो तो बिजनेस हो गया, तो वो कमर्शियली चलाने के लिए तो तुमको, वो तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने तुमको कार का एक एग्जांपल दिया था उसके लिए था ही नहीं, वो अलग से ही था, मतलब वो कार प्राइवेट यूज के लिए थी, कमर्शियल पर्पस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी डेट भी होता है, और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को भी हाइब्रिड बोलते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड जिसको बोला जाता है। तो बैलेंस फंड एक होता है जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली इसमें एक ही फायदा है कि अगर तुमको डेट में भी इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में एक रूल है, टैक्स बचाना है अगर तुमको, क्योंकि इक्विटी फंड के टैक्सेशन कम है और डेट फंड के टैक्सेशन ज्यादा है इंडिया में। तो अगर तुमको डेट का भी मजा लेना है तो तुम क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इक्विटी और डेट अलग अलग, यू कैन यूज हाइब्रिड फंड। इसमें तुम्हारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो 65% से ज्यादा इक्विटी रखता है, 30-35% डेट रखता है, जिससे तुमको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज देयर। सिग्नल, आई थिंक विपुल तुम्हारा क्वेश्चन एक बार वापस लिखोगे, खाली सिग्नल मुझे नहीं समझ में आया। तो जो पहला, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल बोलूं तो दैट इज जो मैंने तुमको पहले बताया, दैट इज EMA 50, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। और इसके अलावा एक और चीज मैंने बोली थी जो था MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्शन, ठीक है। उसके बाद है व्हाट क्वालिटीज और कोर्सेज वी शुड अपग्रेडिंग ऑफ फाइनेंस स्किल्स और नॉलेज। तो या वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट एट द एंड। ऑलराइट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, मेरा एक पर्सनल मानना है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एक्चुअली तुमको ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते, बट तुमको जब भी तुम मार्केट में जाओगे या जब भी कोई एडवाइजर तुमको मिलेगा, तुमको हमेशा बताएगा कि हमारे म्यूचुअल फंड ने निफ्टी को बीट कर दिया, बट वो ये नहीं बताएगा कि इसी फंड मैनेजर ने एक दूसरा फंड भी बनाया था जिसमें वो निफ्टी को बीट नहीं कर पाया था। दूसरा चीज, जो भी मैंने निफ्टी 20 बोला है, इसमें कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसमें पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अकॉर्डिंग तुम इन्वेस्ट करते हो। जो भी म्यूचुअल फंड, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये कभी कभी अगर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट ले ली, जैसे जोमेटो खरीद लिया, तो दूसरे फंड मैनेजर को खरीदना पड़ता है, बिकॉज अगर
70 रुपए की चीज 150 की हो गई और 150 की चीज कल 300 की हो गई और मैंने वो फंड नहीं रखा अपने पोर्टफोलियो में और ये शेयर डबल ट्रिपल चौबल हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो माई इन्वेस्टर्स विल बी अनहैप्पी। बट सोचो सब फंड मैनेजर ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया और सबके फंड नीचे आ गए, तो यू विल नेवर क्वेश्चन, क्योंकि हम रिलेटिव टर्म्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। और मुझे ना मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स की कोई मुझे लालच नहीं है और तुमको भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्केट से ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हम कम रिटर्न नहीं कमा ले। क्योंकि उसका एक और रीजन है, निफ्टी 20 अगर 15% रिटर्न देता है तो तुमको 14.8% रिटर्न इन हैंड आ जाते हैं। ओके, वहीं पर अगर तुम्हारे म्यूचुअल फंड जो एक्टिव फंड मैनेजर करते हैं वो 16.5% की रिटर्न देता है तो तुमको 15 आते हैं। तो कॉस्टिंग ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड इज वेरी हाई, so I personally don't actually invest in such things, so I don't recommend that to you also। ठीक है, तो एडवाइस लेने की जरूरत ही नहीं तुमको किसी से। अगर तुमको रियली, जब तक तुम्हारे पास 10 15 20 लाख नहीं आ जाते, जो स्टार्टिंग वाले इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को ये सब में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज योर टाइम वैल्यू इज मोर। आज तुम जितने टाइम स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर रहे हो उतना ही टाइम तुम अगर अपनी स्किल बिल्डिंग में काम करते तो कुछ अच्छी स्किल सीख लेते। ठीक है, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, राइट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तुमको क्या एक जॉब के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, जैसे एक मार्केटिंग के जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा जो व्हाट यू से तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा जो पोस्चर है, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ये सब तुमको लर्न करना चाहिए, रेदर देन ये एक 10 15 20 हजार रुपए लेकर इन्वेस्ट करना और अपने आप को एक डोपामाइन देना कि मैंने 10,000 के 15,000 कर दिए। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड young people to invest, and especially invest by taking advice and invest in mutual fund। म्यूचुअल फंड में तुम चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसकी एक कॉस्ट है, और अगर ये डायरेक्ट नहीं है, अगर तुमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया है तो इसका कॉस्टिंग 2.5% तक जा सकता है, विच इज अगेन ऑन अ हायर साइड ओनली। तो हम ज्यादा वो रेकमेंड नहीं करते हैं। मैं तुमको निफ्टी 20 जूनियर 20 कंप्लीट करो, जब तक इसमें 5 लाख कंप्लीट नहीं होते तब तक इसमें ही रहो। जब इसमें 5 लाख कंप्लीट हो तो 2.5 लाख रुपए और जो तुम इन्वेस्ट किया 1-1.5 लाख रुपए जो और इन्वेस्ट करोगे वो मिड कैप में करो। वैसे धीरे धीरे 6.5 लाख का एक पोर्टफोलियो बना दो कि 3.5 लाख रुपए विल बी, सॉरी 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए शुड बी इन निफ्टी 20, 1.5 से 2 लाख रुपए शुड बी इन जूनियर 20, और उसके बाद 1 लाख रुपए, तो 4:2:1 का रेशियो बना दो। तो 7 लाख अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 लाख रुपए निफ्टी 20 में होना चाहिए, 2 लाख रुपए जूनियर 20 में होना चाहिए, 1 लाख रुपए निफ्टी मिड कैप में होना चाहिए, और तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई रेकमेंड। अगेन तुम्हारी चॉइस है, आगे तुमको जो भी करना है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क, तो ये मैंने बोल दिया। व्हाट इज द बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर्स, सो नो, एक्चुअली कंपनी कितनी भी अच्छी हो तुमको राइट प्राइस पे मिलनी चाहिए। आज नरीमन पॉइंट हमारे यहाँ पर एरिया है जहां पर 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है भाव। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड लोकेशन, बट इट मे नॉट बी राइट टू बाय एट दैट प्राइस, बिकॉज 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट देना सबके बस में नहीं होगा इन फ्यूचर। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहा हूँ तो और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एक्चुअल अगर 2600 गया है तो वापिस वो 2000 पे भी आता है। तो देर इज नो बेस्ट कंपनी, क्योंकि अगर जो भी लोग यहाँ पर फाइनेंस के हैं और जो लोग इक्विटी रिसर्च सीखना चाहते हैं उन लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम इक्विटी रिसर्च सीखना चाहते हो, ऑलराइट, उस केस में तुमको दो चीजें समझनी है। एक तो तुमको अच्छी कंपनी ढूंढनी और वो राइट वैल्यूएशन पे भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुमने अदानी तो ढूंढ ली बट अब उसकी वैल्यूएशन आउट ऑफ हैंड चली गई है। ठीक है, तो वैसा तुमको वो भी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट इज REIT, सो दीज आर बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली दे बाय द कमर्शियल रियल एस्टेट और उसको रेंट पे देते हैं। ठीक है, और वो जो रेंट रिसीव करते हैं उसका 90% एज ए डिविडेंड तुमको दे देते हैं। सो इट इज बेसिकली म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट। ओके, जिन जिन लोगों को आज जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है रियल एस्टेट खरीदने की, 10 20 50 लाख नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन REITs जो 350 रुपए से शायद चालू होते हैं। तो माइंड स्पेस REIT मेरे ख्याल से 350 400 रुपए का शेयर है, तो वो तुम खरीद सकते हो। ठीक है, गोल्ड लॉकर, MMTC पंप, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बाबू, व्हाट इज योर क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर शेयर, सॉरी सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, तो मैंने जैसे बता दिया ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट, यू जस्ट नीड टू बी विद द फ्लो, एंड विद द फ्लो रहने के लिए तुमको निफ्टी 20 जूनियर 20 और इसमें रहना चाहिए। ओके, बट इन्वेस्टमेंट शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर यू बाय इनफ इंश्योरेंस कि जिससे तुमको कभी भी वापस हॉस्पिटल में या
घर के एक्सपेंसेस के लिए अलग से पैसे निकालने की जरूरत ना पड़े, वो वाली जरूरत नहीं आनी चाहिए। गोल्ड लॉकर, एमएमटीसी, पंप, पी पैम्प क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। आई एम अज्यूमिंग इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, वेर इन द फंड मैनेजर इज इन्वेस्टिंग मनी, मतलब तुम्हारा पैसा वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड खरीदता है और अपने लॉकर में रख देता है। दिस इज देयर मे बी अलग टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली कि गोल्ड गोल्ड लॉकर एमएमटीसी क्या होता है। ठीक है, सो एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ओके, so I just want to tell you first, thank you very much for trusting your friends and me. Okay, I hope this session has given you light on how to invest and what are the mistakes people do. Okay, so I hope this session has helped you to understand what can you do to become rich.